हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग ऑल। तो कैसे हैं आप लोग? आई होप यू ऑल आर फाइन एंड आई एम ऑडिबल टू ऑल ऑफ यू एंड इवन माय स्क्रीन इज विजिबल टू ऑल ऑफ यू। जस्ट गिव योर कंफर्मेशन। गुड गुड गुड। So we'll start in a short while. So get your pen paper ready क्योंकि इनिशियली आज आपको ही मुझे बहुत कुछ सेंड करना रहेगा। So basically I want you people to draw some signals and those signals you will send to me on a WhatsApp. तो जो आज का एजेंडा है it is amplitude modulation. So first of all we'll talk about say modulation and then I give you some examples. I'll want you to draw certain waveforms, certain signals, and then we can discuss upon. So if I start with the modulation, so we have seen basic concepts on modulation. I hope जो भी हमने concepts देखे हुए थे कल regarding basics of communication or I may say basic requirement of a modulation, it is clear to you. उसमें किसी को कोई डाउट नहीं होगा एंड आई थिंक वो काफी क्लियर है कि सबसे पहले तो अगर मैं बात कर रहा हूँ मॉड्यूलेशन का, तो व्हाट इज द सिंपलेस्ट डेफिनेशन ऑफ मॉड्यूलेशन? व्हाट डू यू थिंक? और व्हाई डू वी नीड दिस प्रोसेस? कैन एनीवन आंसर इन द चैट बॉक्स? अ वेरी सिंपल रिक्वायरमेंट और आई मे से व्हाट वी कैन अचीव बाय डूइंग मॉड्यूलेशन। उसके जो एडवांटेजेस हैं, okay, exactly, change in the frequency. Change in the frequency of what, Avish? Change in the frequency of what? और चेंज होगा तो भी क्या होगा? लाइक कॉम्प्रेस होगा या एक्सपांड होगा या फ्रीक्वेंसी शिफ्ट होगा? लाइक व्हाट इज गोइंग टू हैपन विथ व्हाट? ओके, सिग्नल टू बी कैरिड। ओके ओके, कुछ नहीं। सो अगर कोई मुझे पूछेगा कि मॉड्यूलेशन जो है वो अल्टीमेटली है क्या, वो प्रोसेस क्या करेगा, सो व्हाट आई एम गोइंग टू टेल, सो आई एम गोइंग टू टेल कि टू हैव एन अचीवेबल हाइट ऑफ एन एंटेना. Okay, so that is the outcome what we are going to get. So ultimately, why modulation or what is the purpose? So purpose of modulation is to transmit a message signal, to transmit information wirelessly. And for that, we need to use antenna, and there is a constraint in the designing of antenna. What is the minimum height? The minimum height required is lambda by 4. And what we have seen, all our information, what we need to transmit is of low frequency. तो हमें एंटेना बहुत लंबा चाहिए रहेगा, जो पॉसिबल नहीं है. तो एनी हाउ वी नीड टू मूव low frequency message signal, low frequency information to the high frequency. And for that, what we have done, we have used a high frequency carrier signal and we have shifted our low frequency message signal to the high frequency with the process of modulation. बोलो हाँ कि ना? उससे क्या हुआ कि हमारा जो मैसेज सिग्नल था वो हमारा हाई फ्रीक्वेंसी पे पहुंच गया, और जो हमारा एंटीना था जो चाहिए टू ट्रांसमिट द सिग्नल वायरलेसली, उसका अचीवेबल हाइट भी पॉसिबल हो गया. बोलो हाँ कि ना? सो आई होप इट्स क्लियर टू यू. सो नाउ इफ आई start with the basic introduction of even modulation. अगर हम आज बात करेंगे तो if I start a very basic thing, and that basic concept or the basic topic is what I may say I may say analog modulation schemes. So what today from now onwards we are going to discuss is analog modulation scheme. बेटा टाइम पे आया करो. चलिए, so now if we talk about, so now basic or say initial thing is what we are going to talk about, say analog. Get your pen paper ready because I need it badly, and even keep your WhatsApp ready. वो तो क्या ready रखोगे? Ready है. Okay, so what we are going to learn today?
we are going to learn today is analog modulation scheme. Acha. Now, as an electronics engineer, not an electronics engineer, as an communication engineer, आपको ये पता होना चाहिए कि आप कोई भी मॉड्यूलेशन स्कीम यूज करोगे, आप जो एनालॉग मॉड्यूलेशन स्कीम है, आप कोई भी मॉड्यूलेशन स्कीम यूज करोगे तो उसके अंदर आपका जो इंफॉर्मेशन है वो कौन कैरी करेगा, राइट? तो जो भी हम मॉड्यूलेशन स्कीम्स पढ़ने वाले हैं वो सभी के अंदर आपका एक तो क्वेश्चन क्या होना चाहिए कि सर इंफॉर्मेशन कौन कैरी कर रहा है। अगर मैं बात कर रहा हूं मॉड्यूलेशन का, तो इवन हमने देखा हुआ है डिवाइसेस के अंदर चैनल लेंथ मॉड्यूलेशन, बेस विड्थ मॉड्यूलेशन। तो कोई मुझे बता पाएगा, मैंने तब भी बताया था आपको मॉड्यूलेशन का मतलब क्या होता है, तो कोई बता पाएगा व्हाट इज द मतलब, व्हाट इज द टेक्निकल मीनिंग ऑफ अ मॉड्यूलेशन इन वर्ड्स? चैनल लेंथ मॉड्यूलेशन और आई में से बेस विड्थ मॉड्यूलेशन, तो ये हर एक जगह पे मॉड्यूलेशन वर्ड यूज हो रहा है, तो उसका टेक्निकल मीनिंग भी कुछ है। तो आई टोल्ड यू अर्लियर, तो डू यू थिंक चेंजिंग अ पैरामीटर बाय कीपिंग अदर पैरामीटर्स कांस्टेंट, change in any parameter is modulation? Okay, obviously, like what you are talking about, changing a parameter, but the thing is modulation means changing a parameter of some other quantity by changing some I mean say change in some other quantity by changing some other quantity, like if I take an example, तो चलिए मुझे ये बताओ, अगर हमें मॉड्यूलेशन करना है, सो फॉर मॉड्यूलेशन व्हाट डू वी नीड? फॉर मॉड्यूलेशन व्हाट डू वी नीड? डेफिनेटली यू विल से वी नीड हाई फ्रीक्वेंसी कैरियर सिग्नल। व्हाट डू वी नीड? वी नीड हाई फ्रीक्वेंसी कैरियर सिग्नल, राइट? तो हाँ, इंफॉर्मेशन तो है और कैरियर भी है, मगर इंफॉर्मेशन तो हमारे पास वैसे भी है, अगर हम मॉड्यूलेट नहीं करेंगे फिर भी हमारे पास इंफॉर्मेशन तो है ही। अगर हम बात कर रहे हैं मॉड्यूलेशन का, तो हमें डेफिनेटली चाहिए रहेगा कैरियर सिग्नल। तो मैंने आपको कल बताया था कि जो कैरियर सिग्नल है उसको मैं क्या बोलेगा, उसको मैं सी ऑफ टी बोलेगा, और इसका इन जनरल इक्वेशन क्या लूंगा मैं, उसका इन जनरल इक्वेशन लूंगा मैं ए सी कॉस और साइन, वॉट एवर, डोंट वरी अबाउट इट, अल्टीमेटली अ साइनसोइडल सिग्नल, ए सी कॉस ऑफ आई में से 2 पाई एफ सी टी प्लस, अभी मैं ले रहा हूं इवन इसका फेज जो है थीटा से। सो नाउ टेल मी, अगर हम बात कर रहे हैं कैरियर का, तो कैरियर का यहां पे कौन कौन सा प्रॉपर्टी आपको दिख रहा है? कैरियर का आपको यहां पे कौन कौन सा प्रॉपर्टी दिख रहा है? तो आई में से आपको दिख रहा है कि कैरियर के पास एम्पलीट्यूड है, बोलो हाँ कि ना? कैरियर के पास एम्पलीट्यूड है, कैरियर के पास फ्रीक्वेंसी है, इवन कैरियर के पास फेज भी है, बोलो हाँ कि ना? जो कैरियर सिग्नल यहां पे है उसके पास एम्पलीट्यूड है, फ्रीक्वेंसी है, फेज है। तो अगर हम अलग अलग एनालॉग मॉड्यूलेशन स्कीम की बात कर रहे हैं, सो इन दैट केस व्हाट इज गोइंग टू हैपन, इन वन ऑफ द स्कीम्स कैरियर का एम्पलीट्यूड चेंज होगा, इन अदर मॉड्यूलेशन स्कीम कैरियर का फ्रीक्वेंसी चेंज होगा, and in another modulation scheme carrier का phase change होगा, right? So according to this changes made in the carrier signal property, we have different modulation schemes. मेरी बात समझ रहे हो मैं क्या बोल रहा हूं? यहां जो कैरियर है, ये कैरियर के पास we can see कि 3 अलग अलग प्रॉपर्टी है, आइदर कैरियर का एम्पलीट्यूड चेंज होगा, और कैरियर का फ्रीक्वेंसी चेंज होगा, और कैरियर का फेस चेंज होगा। मगर ये चेंज जो होगा वो किसके अकॉर्डिंगली होगा, कोई बता पाएगा? ये जो कैरियर का जो पैरामीटर है, आई में से एम्पलीट्यूड, फ्रीक्वेंसी और फेस, अच्छा अकॉर्डिंग टू मैसेज सिग्नल। मगर मैसेज सिग्नल का क्या, मैसेज सिग्नल का क्या, मैग्नीट्यूड, फ्रीक्वेंसी, फेज क्या? एग्जैक्टली अकॉर्डिंग टू मैसेज सिग्नल्स एम्पलीट्यूड, अगर उसका कैरियर का एम्पलीट्यूड चेंज होगा
या तो फिर उसका कैरियर फ्रीक्वेंसी का कैरियर सिग्नल का फ्रीक्वेंसी चेंज होगा या फिर कैरियर सिग्नल का फेज चेंज होगा। तो अगर मैं यहाँ पे बात कर रहा हूं तो क्या बात करूंगा, मैं ये बात करूंगा कि एनालॉग मॉड्यूलेशन स्कीम्स कौन से हैं। सो आई मे से अकॉर्डिंग टू m of t's amplitude, according to m of t's amplitude, if AC changes, तो ये मॉड्यूलेशन स्कीम को हम क्या बोलेंगे। अगर कैरियर फ्रीक्वेंसी का AC इज एम्पलीट्यूड, वो चेंज हो रहा है अकॉर्डिंग टू m of t's एम्पलीट्यूड, तो इसको बोलेंगे एम्पलीट्यूड मॉड्यूलेशन। बात समझ रहे हो, इसको क्या बोलेंगे, इसको बोलेंगे एम्पलीट्यूड मॉड्यूलेशन। क्यों? क्योंकि यहाँ पे एम्पलीट्यूड मॉड्यूलेट हो रहा है। मॉड्यूलेट होने का मतलब क्या है बेटा, मॉड्यूलेट होने का मतलब क्या है, चेंज हो रहा है। क्या चेंज हो रहा है, एम्पलीट्यूड चेंज हो रहा है। किसका एम्पलीट्यूड चेंज हो रहा है, तो कैरियर सिग्नल का एम्पलीट्यूड चेंज हो रहा है। किसकी वजह से चेंज हो रहा है, तो बेटा जो m of t का एम्पलीट्यूड है उसकी वजह से चेंज हो रहा है। बोलो हाँ कि ना। और अगर यहाँ पे if fc is going to changes, if fc is going to change, तो अगर fc changes तो क्या होगा, अगर fc चेंज हो रहा है यानी कि कैरियर फ्रीक्वेंसी चेंज हो रही है, तो इसको हम बोलेंगे फ्रीक्वेंसी मॉड्यूलेशन। बोलो हाँ कि ना, इसको हम बोलेंगे फ्रीक्वेंसी मॉड्यूलेशन। ये सभी वर्ड्स आप लोगों ने सुने हुए हैं, बट द थिंग इज इसका मीनिंग, इसका प्योर मैथ्स आप लोग पढ़ोगे ये सब्जेक्ट के अंदर। अगर हम बोल रहे हैं कि सपोज इसका फेज चेंज हो रहा है, अगर हम बोल रहे हैं कि थीटा सी चेंज होगा, तो इसको क्या बोलते हैं, तो इसको बोलते हैं फेज मॉड्यूलेशन। आई होप नाम क्लियर है, और जो प्रोसेस है वो प्रोसेस मैं आपको धीरे धीरे क्लियर कराता जाऊंगा। सो इट्स अ फेज मॉड्यूलेशन। बोलो हाँ कि ना। ये चीज जो है वो आप नहीं भूलोगे, क्लियर है। इवन यहां पे हम क्या बोल सकते हैं, यहां पे हम ये बोल सकते हैं कि जो FM एंड PM है, ये FM और PM का एक और नाम है, और इनमें से FM और PM जो है वो एक ग्रुप क्रिएट करता है। FM प्लस PM are also known as angle modulation schemes, are also known as angle modulation scheme। कोई बता पाएगा ऐसा क्यों बोलते हैं, FM और PM को कंबाइंडली एंगल मॉड्यूलेशन स्कीम क्यों बोलते हैं? किसी के पास कोई आइडिया है, ऐसा क्यों बोलते हैं? ऐसा क्यों बोलते हैं कि ये कंबाइंडली हम इसको बोल सकते हैं एंगल मॉड्यूलेशन स्कीम? क्योंकि अगर आपको दिख रहा है तो आपको ये दिखना चाहिए कि ये जो है ये पूरा का पूरा ये क्या है, ये क्या है, कैरियर का फेज है। ये पूरा का पूरा कैरियर का फेज है, फाई सी। सो आपको दिख रहा है कि अगर इसका फ्रीक्वेंसी चेंज होगा तो भी इसका फेज चेंज होगा, और अगर इसका फेज चेंज हो रहा है तो भी कैरियर का एंगल चेंज होगा। सॉरी, इट्स नॉट फेज, आई मे से इट्स एंगल, आई मे से इट्स एंगल ऑफ कैरियर। ये पूरा क्या है, आई मे से इट्स एंगल ऑफ C of t। तो आपको दिख रहा है कि जैसे ही आप क्या करोगे, जैसे ही आप फ्रीक्वेंसी चेंज करोगे तो उसका एंगल चेंज होगा, और फेज चेंज करोगे तो भी उसका एंगल चेंज होगा। बोलो हाँ कि ना। क्लियर है ये चीज सबको? सो शैल आई मूव अहेड। ये बेसिक चीज था, ये आपका बेसिक इंट्रोडक्शन था। तो अगर मैं इसके आगे बढ़ रहा हूं तो चलिए अब आपको करना पड़ेगा यूज व्हाट्सएप का एंड आपकी कलम का। चलिए, तो मैं आपको कुछ सिग्नल्स ड्रॉ करने के लिए दे रहा हूं, तो देखते हैं आप लोग क्या ड्रॉ करते हो और मुझे क्या सेंड करते हो। तो चलिए, शैल आई गो वन बाय वन।
So if I go one by one, so my first signal is say S1, but S1 को मारो गोली, अभी उसको मैं लिखता हूं से m of t. ये जस्ट मैं रैंडम एग्जांपल्स ले रहा हूं अभी, इसको कहीं ना कहीं जोड़िएगा नहीं. से m of t is equal to, I may say cos of 2 pi, cos of 2 pi 0.1 t. इसको ड्रॉ नहीं करना है, इसको आप ड्रॉ कर ही लोगे. और साथ में मैं क्या ले रहा हूं, मैं साथ में ले रहा हूं c ऑफ t. यहां मैं बहुत ज्यादा फ्रीक्वेंसी नहीं ले रहा हूं, थोड़ा कम ले रहा हूं. आई में से जस्ट टू विजुलाइज इट, आई में से cos ऑफ 2 पाई, आई में से 10t. राइट, यहां फ्रीक्वेंसी बहुत कम है, इसका फ्रीक्वेंसी 0.1 है, इसका फ्रीक्वेंसी 10 है, तो आई में से कैरियर का फ्रीक्वेंसी है वो 100 गुना है. राइट, मैं एक और सिग्नल यहां से ड्रॉ करना चाहता हूं, एंड दैट सिग्नल इज आई में से s ऑफ t. s ऑफ t इज इक्वल टू m ऑफ t इंटू c ऑफ t. चलिए, तो आप s ऑफ t ड्रॉ करके मुझे भेज सकते हो. व्हाट आई नीड s ऑफ t टू बी ड्रॉन बाय यू. तो आप ये s ऑफ t जो है m ऑफ t इंटू c ऑफ t, कैन यू ड्रॉ दिस एंड सेंड इट टू मी? Like, take your time, I'm not in a hurry, take your time. M of t c of t का multiplication, are you able to think about it? A rough idea कि ये कैसा दिखाई देगा. सो चलिए, मेरा जो स्क्रीन है वो फिर से बंद कर रहा हूं, so that I can look at your answers. आपको शायद आज ये लिंक मिल जाएगा, और आपको लिंक मिल गया होगा शायद कम्युनिकेशन सिस्टम का जो कल का लेक्चर था वो. सो इट्स ओपन फॉर ऑल, यू कैन स्प्रेड अमॉन्ग्स योर फ्रेंड्स. हाँ, कॉस था प्रामाणिक, दोनों कॉस थे. कॉस ऑफ 2 पाई 0.1 t इंटू कॉस ऑफ 2 पाई इंटू 10 t. ओके, जब तक कि आपके आंसर्स आ रहे हैं, लेट मी शेयर माय स्क्रीन ओवर हियर so that it would be visible to you. चलिए, आंसर्स आ रहे हैं, तब तक मैं यहाँ क्वेश्चन को रखा है यहाँ पे. हाउ शुड यू अप्रोच दिस? ओके, कुछ नहीं, पहले आप लोग भेजो, उसके बाद मैं कुछ बोलता हूँ. अभी मैं आपको क्या दिखा रहा हूं, बिलीव मी, अगर हमने 15-20 मिनट ये एक्सरसाइज कर लिया ना, आपको AM और DSB-SC डबल साइडबैंड सप्रेस कैरियर, आप ये पूरा समझ जाओगे कि ये है क्या. किसी को ये लिस्ट चाहिए कि हम लोग कौन कौन सा स्कीम पढ़ने वाले हैं? जो एनालॉग मॉड्यूलेशन स्कीम है, हम उसमें क्या क्या पढ़ने वाले हैं? तो पहले हम पढ़ेंगे एम्पलीट्यूड मॉड्यूलेशन, उसके बाद हम पढ़ेंगे DSB-SC, उसके बाद पढ़ेंगे SSB, उसके बाद पढ़ेंगे FMPM. विशिष्ट साइड बैंड इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, VSB, बट देखते हैं, मैं आपको उसका ओवरव्यू दे सकता हूँ कि VSB क्या है. बट अभी के लिए जस्ट फोकस ऑन दिस मल्टीप्लिकेशन. आप ये कैसे करोगे? ओके, चलिए, आंसर्स आने शुरू हो गए हैं, तो चलिए मैं अपना स्क्रीन जो है वो बंद करता हूं, so that I can look at your answers. ओके, पुष्कर, आपने फ्रीक्वेंसी डोमेन भेजा है,
मुझे फ्रीक्वेंसी डोमेन नहीं चाहिए। बेटा आप लोग फ्रीक्वेंसी डोमेन भेज रहे हो, मुझे फ्रीक्वेंसी डोमेन नहीं चाहिए, मुझे टाइम डोमेन चाहिए। बेटा मुझे टाइम डोमेन चाहिए, फ्रीक्वेंसी नहीं चाहिए। गुड गुड गुड, एक्सीलेंट, लाइक प्रामाणिक गॉट द आंसर। गुड गुड, मुझे फ्रीक्वेंसी डोमेन नहीं चाहिए बेटा, मुझे टाइम डोमेन चाहिए। कि टाइम डोमेन में ये कैसा दिखाई देगा। ओके देवेंद्र, रफली, okay, roughly it would look something like this. Okay, okay, good 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 good। जस्ट थिंक अबाउट इट, आप एक हाई फ्रीक्वेंसी सिग्नल को मल्टीप्लाई कर रहे हो विथ अ लो फ्रीक्वेंसी सिग्नल, तो क्या क्या होगा। आप मल्टीप्लाई कर रहे हो अ हाई फ्रीक्वेंसी सिग्नल को विथ अ लो फ्रीक्वेंसी सिग्नल, तो क्या होगा। अगर मैं यहां पे आपको हिंट दे रहा हूं तो हिंट क्या होगा, जो हाई फ्रीक्वेंसी कैरियर सिग्नल है उसका जो एक साइकिल है, बिकॉज उसका फ्रीक्वेंसी बहुत ज्यादा है, राइट। सो फॉर अ सिंगल साइकिल ऑफ द हाई कैरियर फ्रीक्वेंसी सिग्नल यू कैन कंसीडर कि जो लो फ्रीक्वेंसी मैसेज सिग्नल है उसका एम्पलीट्यूड इज ऑलमोस्ट कांस्टेंट। बोलो हाँ कि ना, मेरी बात समझ रहे हो। ओके ओके, टेक योर टाइम, टेक योर टाइम। एंड अगर चलिए, अगर ये नहीं सोच, मैं चुप रहता हूं, चलिए। अदरवाइज हमारे पास है, क्या है, डेस्मोस। अरे बाप रे, अभी कौन आया। ओके, अभिषेक, अभिषेक ऑलमोस्ट, ऑलमोस्ट, ऑलमोस्ट लाइक दैट। ओके, चलिए चलिए चलिए, लिव इट लिव इट। मैं पहले दिखा देता हूं आपको, तो आपको थोड़ा बहुत आइडिया लग जाएगा। देखिए आपका ध्यान यहाँ पे, इज इट आपका cos ऑफ 2π.1x, सबको दिख रहा है। ओके चलिए बेटा लिव इट, अभी मत कीजिए व्हाट्सएप पे, ध्यान मत दीजिए, इट्स ओके। ये होगा आपका cos ऑफ 2π.1t। हाँ सब लोग आ गए हैं बेटा, सब लोग अभी स्क्रीन पे देख रहे हो। हेलो, अभी सब लोग स्क्रीन पे देख रहे हो। ओके ओके, सो इट्स अ cos ऑफ 2π.1x, राइट। सेकंड इज आपका कैरियर सिग्नल, तो दिख रहा है सबको कैरियर सिग्नल। यहाँ पे मैंने जस्ट यहाँ पे आई कैन स्केल दिस एक्स एक्सिस, इसीलिए मैंने जो कैरियर फ्रीक्वेंसी है उसको सिर्फ 100 गुना लिया है। अदरवाइज जनरली व्हाट डू यू थिंक, इसका फ्रीक्वेंसी कितना होगा, बहुत ज्यादा होगा, राइट, अप्रोक्सीमेटली 10⁻³ 10⁻⁴। तो मैंने अभी जस्ट हमें दिखाई दे इसलिए मैंने इसको रखा है cos ऑफ 2π10x, राइट। सो आई थिंक सबको अभी दिख रहा है। तो देखिए अगर इसको ध्यान से देख रहे हो, देखिए अगर इसको ध्यान से देख रहे हो तो जो मैं आपको पहले बोल रहा था कि फॉर अ सिंगल साइकिल, फॉर द सिंगल साइकिल ऑफ अ कैरियर सिग्नल, फॉर अ सिंगल साइकिल ऑफ अ कैरियर सिग्नल यू कैन कंसीडर जो मैसेज सिग्नल जो है उसका कांस्टेंट एम्पलीट्यूड। बोलो हाँ कि ना, सबको ये बात समझ में आ रही है। देखो मैं और जूम इन कर रहा हूं, तो देखो ये कैरियर का एक साइकिल है, सबका साथ बना हुआ है। ये फॉर सिंगल साइकिल, फॉर सिंगल साइकिल ऑफ अ हाई फ्रीक्वेंसी कैरियर सिग्नल, जो मैसेज सिग्नल का एम्पलीट्यूड है उसको हम कांस्टेंट ले सकते हैं। बोलो हाँ कि ना बेटा। हाँ, इसी तरह से हर एक इंडिविजुअल साइकिल के लिए
It is something like we are multiplying our individual cycle of carrier with a constant magnitude of m of t, और जो m of t है वो वेरिएबल है, बोलो हाँ कि ना, और जो m of t है वो वेरिएबल है, बोलो हाँ कि ना. तो it is something like कि multiplying individual cycle of a carrier signal with constant amplitude which is variable. अब मुझे ये बताओ, ये जो कांस्टेंट एम्पलीट्यूड है वो वेरी किसके हिसाब से हो रहा है? ये जो कांस्टेंट एम्पलीट्यूड है वो वेरी किसके हिसाब से हो रहा है? अकॉर्डिंग टू व्हाट? एम ऑफ टी. और नहीं 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 नहीं, अगर स्पेसिफिकली बोल रहे हो तो वो भी मैसेज सिग्नल का जो एम्पलीट्यूड है उसी का वेरिएशन है, राइट? तो अगर हम इन दोनों को मल्टीप्लाई कर रहे हैं, ओ बाप रे, तो आपको ऐसा सिग्नल मिलेगा. बोलो हाँ कि ना, बोलो हाँ कि ना. अगर मैं इसके साथ में m ऑफ t को भी ड्रॉ कर रहा हूं तो देखिएगा आपको दिख रहा है कि ये जो आपका मैसेज सिग्नल है वो ये पॉजिटिव साइकिल, ये नेगेटिव साइकिल, ये पॉजिटिव साइकिल, उसके बाद नेगेटिव साइकिल. आर यू एबल टू लुक एट दैट? आर यू एबल टू लुक एट दैट? हाँ बेटा, बेटा समझ रहे हो ये बात को? हेलो, हाँ. और यहां पे क्या होगा? हाँ, जब भी आपका जो मैसेज सिग्नल है वो नेगेटिव साइकिल में एंटर हो रहा है तब क्या होगा? यहां 180 का फेज शिफ्ट आएगा. यहां पे ये 180 का फेज शिफ्ट आएगा ये पॉइंट पे. मगर वो इतना इंपॉर्टेंट नहीं है. मगर मुझे ये बताओ, अभी आपको ये फील आ रहा है कि अगर हम हाई फ्रीक्वेंसी कैरियर को लो फ्रीक्वेंसी मैसेज के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो इस केस में क्या हो रहा है? जो कैरियर का एम्पलीट्यूड है वो चेंज हो गया है अकॉर्डिंग टू मैसेज सिग्नल्स एम्पलीट्यूड. बोलो हाँ कि ना. जितने भी लोग यहां पे हैं उनको ये बात समझ में आई है? जितने भी लोग यहां पे हैं उन सभी लोगों को ये बात समझ में आई है? किसी को भी ये डाउट है इसके अंदर? ये पूरा समझ रहे हो मैं क्या बोल रहा हूं? हेलो बच्चा लोग, हाँ बच्चा लोग, ये समझ रहे हो क्या बोल रहा हूं मैं? यहां पे क्या हो रहा है? बेटा रिप्लाई तो करो. You are multiplying low frequency signal with a high frequency signal, which means what? आपका जो हाई फ्रीक्वेंसी कैरियर सिग्नल है उसका एक सिंगल साइकिल जो है वो ऑलमोस्ट एंड अगेन आई एम टेलिंग यू, ये एग्जांपल को ध्यान में मत रखना. क्यों? क्योंकि डेस्मोस के अंदर आई कैन नॉट चेंज ये एक्स एक्सिस का स्केल, उसकी वजह से मैंने यहाँ पे जो कैरियर है उसको 100 गुना ही लिया है. जनरली जो आपका ये होता है, कौन होता है कैरियर, वो 100 से 1000 गुना होता है. हमें यहाँ पे सिर्फ इसको फील करना है. दैट्स व्हाई आई हैव गॉन थ्रू दिस. बोलो हाँ कि ना. सभी सहमत हो ये बात से? बेटा आंसर करो ना बेटा, तो मैं आगे बढ़ूं. हाँ, फेस शिफ्ट वाला पता नहीं चला. इट्स ओके, इट्स ओके, इट्स ओके पृथ्वीराज. अगर मैं वो समझा रहा हूं फेस शिफ्ट वाला, वो इतना काम का नहीं है पृथ्वीराज. अगर मैं यहां बात कर रहा हूं, देख, अगर मैं यहां पे बात कर रहा हूं, यहां पे दो कंसेप्ट होते हैं. यहां पे दो कंसेप्ट होते हैं. कौन से? एक होता है पॉजिटिव एनवेलप, एक होता है नेगेटिव एनवेलप. तो बेटा यहां पे जो पॉजिटिव एनवेलप है वो क्या होगा? पॉजिटिव एनवेलप क्या होगा? जो आपका मैसेज सिग्नल है, देखो ये कौन है, ये कौन है? यहां पे मैं एनोटेट नहीं कर पा रहा हूं, लिख नहीं पा रहा हूं. तो ऐसा करूं, मैं इसको ले लूं इसके अंदर. जस्ट गिव मी सम टाइम. मैं इसको लेता हूं मेरा इसके अंदर वन नोट के अंदर. जस्ट वेट सेकंड, वेट अ सेकंड. ओके चलिए, सो वी हैव अ स्क्रीनशॉट ओवर हियर. तो चलिए, अगर मैं यहां बात कर रहा हूं किसके बारे में? अगर हम बात कर रहे हैं इसके लिए,
तो चलिए लेट मी ड्रॉ ओवर हियर। मैं क्या समझा रहा हूं आपको, सो पृथ्वीराज यहाँ पे देखो मैं क्या बोल रहा हूं, यहाँ पे मैं ये बोल रहा हूं कि देखो यहाँ पे ये क्या है, यहाँ पे ये क्या है आपका, आई में से ये आपका पूरा का पूरा एम ऑफ टी है, बोलो हाँ कि ना। यहाँ पे ये जो है वो पूरा का पूरा एम ऑफ टी है। इवन देखो आप एक ध्यान से देखो यहाँ पे, ये पूरा जो वेरिएशन हो रहा है ये पूरा एम ऑफ टी है। अभी जहां पे मेरा कर्सर घूम रहा है ये पूरा एम ऑफ टी है। तो आई में से ये जो है ये मैसेज का पॉजिटिव हाफ साइकिल है, और ये जो है ये मैसेज का नेगेटिव हाफ साइकिल है, बोलो हाँ कि ना। ये जो है वो मैसेज का पॉजिटिव हाफ साइकिल है, और ये जो है वो मैसेज का नेगेटिव हाफ साइकिल है। अब मेरी बात सुनो, क्या होगा, ये जो आपका पॉजिटिव हाफ साइकिल है तब आपका क्या हो रहा है, जो कैरियर है वो कैरियर मल्टीप्लाई हो रहा है, राइट। तो मुझे ये बताओ पृथ्वीराज, कैरियर का यहाँ पे जो कैरियर है, यहाँ पे जो कैरियर है, जब मैसेज का पॉजिटिव हाफ साइकिल आएगा तो वो जो कैरियर है वो मल्टीप्लाई होगा आई में से विथ 1, आई में से विथ 0.9, आई में से विथ 0.8, विथ 0.7, विथ 0.1 एंड लाइकवाइज, बोलो हाँ कि ना। जब मैसेज सिग्नल का पॉजिटिव हाफ साइकिल है तब पॉजिटिव हाफ साइकिल में आपका जो कैरियर सिग्नल है वो स्केल अप या स्केल डाउन होगा विथ पॉजिटिव नंबर्स, विथ ओनली पॉजिटिव नंबर्स। तो मुझे बताओ उसका फेस चेंज होगा, जो कैरियर सिग्नल है उसका फेस चेंज होगा, नहीं होगा, क्योंकि आपका जो कैरियर सिग्नल है वो मल्टीप्लाई हो रहा है विद द पॉजिटिव मैग्नीट्यूड ऑफ द मैसेज सिग्नल, राइट। बट नाउ पृथ्वीराज लेट मी नो, जब ये नेगेटिव हाफ साइकिल आएगा तब क्या होगा, जब नेगेटिव हाफ साइकिल आएगा एम ऑफ टी का तब क्या होगा, जो कैरियर सिग्नल है वो मल्टीप्लाई होगा विथ नेगेटिव एम्पलीट्यूड, एग्जैक्टली एम्पलीट्यूड रिवर्सल होगा। इसीलिए बोल रहा हूं कि यहाँ पे 180 का फेस शिफ्ट आएगा इन नेगेटिव हाफ साइकिल, मगर वो दिखता नहीं है आपको। क्यों नहीं दिखता है, 180 का फेस शिफ्ट है मगर आपको दिख क्यों नहीं रहा है, क्योंकि आपका जो फंक्शन है, नहीं फास्ट चेंज नहीं हो रहा है, हाई फ्रीक्वेंसी भी नहीं है। आपको क्यों नहीं दिख रहा है, क्योंकि भाई सिमेट्रिकल है, सिमेट्रिकल है ना। जो हरकत इवन कैरियर में हो रही है फॉर पॉजिटिव वैल्यू है उतना ही उसका नेगेटिव वैल्यू है, बोलो हाँ कि ना। ये सब निकाल दो, मैं यहाँ कैरियर रख रहा हूं, देखो कैरियर, इन केस ऑफ कैरियर भी क्या है, ये सिमेट्रिकल है ना, ये सिमेट्रिकल है बेटा विथ रिस्पेक्ट टू आई में से एक्स एक्सिस। सर पर एम्पलीट्यूड चेंज किया ना, बेटा मुझे ये बताओ, जब आपका कैरियर सिग्नल मल्टीप्लाई होगा, जब आपका नेगेटिव हाफ साइकिल में आपका कैरियर सिग्नल, सपोज कैरियर सिग्नल मल्टीप्लाई हो रहा है विथ माइनस ऑफ 0.5, विथ माइनस ऑफ 0.5। अच्छा अभिषेक फेज कैसे, हाँ मैं ऐसा नहीं बोल रहा हूं कि यहाँ पे फेज चेंज हो रहा है, हाँ अभिषेक यहाँ फेज चेंज नहीं हो रहा है, वो दिख रहा है तुझे, हाँ अभिषेक जो फेज चेंज हो रहा है वो दिख रहा है, नहीं वो दिख ही नहीं रहा है। तो यहाँ पे फेज चेंज यानी क्या बोल रहा हूं मैं, ये जब आपका नेगेटिव हाफ साइकिल आएगा उसकी वजह से आपका कैरियर सिग्नल जो है उसके अंदर 180 का फेज शिफ्ट आएगा, और 180 का फेज शिफ्ट डज नॉट प्रोवाइड अस एनी इंफॉर्मेशन, राइट। ये सिर्फ लिटरेचर में बोलते हैं, लिटरेचर में क्या बोलते हैं कि 180 का फेज शिफ्ट आता है। तो वो क्यों आता है, जनरली कोई फैकल्टी बोलता नहीं ये चीज, क्यों, क्योंकि वो इंपॉर्टेंट ही नहीं है। आपको ये पता लगना चाहिए यहाँ पे कि यहाँ पे आई में से जो सी ऑफ टी है, यहाँ पे आई में से पॉजिटिव वैल्यूज आ रही है, किसका, पॉजिटिव वैल्यूज आ रही है एम ऑफ टी का, और जब ये आ रहा है तब दिखना चाहिए आपको कि यहाँ पे नेगेटिव वैल्यूज आ रही है एम ऑफ टी का। इतना दिख रहा है आपको, हाँ एग्जैक्टली आपका एम्पलीट्यूड रिवर्सल होगा, बट इट इज नॉट एविटेबल ओवर हियर, इट इज नॉट ऑब्जर्वेबल ओवर हियर
क्योंकि जो आपका कैरियर सिग्नल है, जो कॉस है, वो सिमेट्रिकल टू आपका एक्स एक्सिस है, राइट। अभी मैं आगे बढ़ू, मेरा पर्पस ये था, हाँ मेरा पर्पस ये था यहाँ पे, बेटा सब लोग यहाँ पे समझ रहे हो मेरी बातें, यहाँ पे सब लोग मेरी बातें समझ रहे हो? हाँ, शैल आई मूव अहेड? यहाँ पे सभी लोगों को कैरियर का एम्पलीट्यूड चेंज हो रहा है अकॉर्डिंग टू मैसेज सिग्नल का एम्पलीट्यूड, ये सबको दिख रहा है। यहाँ पे सभी लोगों को ये दिख रहा है कि कैरियर सिग्नल का एम्पलीट्यूड चेंज हो रहा है अकॉर्डिंग टू मैसेज सिग्नल्स मैग्नीट्यूड, बराबर है? अच्छा 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 अच्छा, अगर ये सब आप लोगों को क्लियर है तो चलिए मैं एक और चीज आपको दिखाता हूं, या मुझे आपसे एक और चीज पूछनी है। हैव यू एवर हर्ड अबाउट पिक डिटेक्टर? हैव यू एवर हर्ड अबाउट पिक डिटेक्टर? या आप लोग नाम से कुछ अंदाजा लगा पाओगे इसका नाम क्या है? नाम से कुछ बोल पाओगे? पिक डिटेक्टर सर्किट क्या होगा, कैसे इंप्लीमेंट करेंगे, वो मैं आपको समझाऊंगा, आगे समझाऊंगा, मगर अभी मुझे कौन बताएगा कि क्या होता है पिक डिटेक्टर? ओके ओके, मैक्सिमम वैल्यू को आइडेंटिफाई करेगा, राइट। तो यहां पे सपोज हमारे पास क्या है, सपोज हमारे पास ये है, कौन है? S1। हमारे पास क्या है? S ऑफ टी, राइट। हमारे पास ये S ऑफ टी है। तो माय नेक्स्ट क्वेश्चन इज कि मैं जो S ऑफ टी है, ये S ऑफ टी को पास कर रहा हूं, जो S ऑफ टी है, ये S ऑफ टी को मैं पास कर रहा हूं थ्रू पिक डिटेक्टर। क्या बोला मैं S ऑफ टी को पास कर रहा हूं थ्रू अ पिक डिटेक्टर। सो व्हाट डू यू थिंक, इसका आउटपुट क्या मिलेगा? इसको मैं पास कर रहा हूं थ्रू अ पिक डिटेक्टर, मेरी बात समझिएगा, आपको मैं पूरा मोटिवेशन समझा रहा हूं कि एएम का मोटिवेशन कहां से आया। जस्ट स्टे विथ मी फॉर हाफ एन आवर, यू विल गेट एवरी पॉइंट विच आई एम गोइंग टू कन्वे। तो चलिए मुझे ये बताओ, अगर हम इसको पास कर रहे हैं, किसको? अगर हम S1 को पास कर रहे हैं, तो मुझे ये बताओ व्हाट डू यू थिंक इसके आउटपुट में क्या होगा? जस्ट लेट मी गो बैक टू माय डेस्मोस एंड चलिए यहां पे बात कर रहे हैं। हाँ बताओ, अगर हम इसको पास कर रहे हैं ओनली इम्पल्सिस ऑफ अ मैक्सिमम वैल्यू, ओके, डिस्क्रीट रिप्रेजेंटेशन, ओके, यहां पे अगर आप पास करोगे, यहां जो पिक है ना, ये पिक्स को डिटेक्ट करेगा, ये जो है ये पिक्स को डिटेक्ट करेगा। तो चलिए अगेन यहां पे अगर मैं समझा रहा हूं आपको, सो लेट मी इंसर्ट इमेज ओवर हियर, अगेन ओवर हियर। अगर मैं इसको यहां फिर से डाल रहा हूं, तो चलिए व्हाट इज गोइंग टू हैपन ओवर हियर कि, हाँ कुछ नहीं, चलिए आप लोग आंसर मत कीजिए, मैं दिखाता हूं आपको सब कुछ। ओके वेट। तो अगर हम यहां पे बात कर रहे हैं कि यहां पिक्स को डिटेक्ट कर रहे हैं, चलिए अगर हम पिक्स को डिटेक्ट कर रहे हैं तो क्या होगा? अगर हम यहां पे पिक्स को डिटेक्ट कर रहे हैं, चलिए मेरी बात सुनिएगा यहां पे। तो चलिए आई एम ऑन अ मिशन, तो यहां पे मैं पिक्स को डिटेक्ट कर रहा हूं, तो यहां पे मैं क्या बोलूंगा? ये सभी पिक्स है, ये सभी पिक्स वैल्यू है, तो आई में से अल्टीमेटली यही डिटेक्ट होगा, यही आपका पिक है, ये सभी वैल्यूज जो है यही आपकी पिक वैल्यूज है। हाँ अभी इंपल्स भूल जाओ, डिस्क्रीट नहीं करना है बेटा, कंटिन्यूअस करना है। वहां पे मैं यूज करेगा आरसी टाइम कांस्टेंट को, और मैं चार्ज करूंगा कैपेसिटर को, और उसके बाद उसका डिस्चार्जिंग ऑलमोस्ट जीरो कर दूंगा। तो उससे क्या होगा? अगर मैं ये बात कर रहा हूं कि सपोज हमारे पास कोई ऐसा सिग्नल है, राइट,
ये AM ही है। नाउ व्हाट आई विल डू, अगर पिक डिटेक्टर है तो कैपेसिटर यहां तक चार्ज करेगा, फिर उसको डिस्चार्ज होने ही नहीं दूंगा। यहां तक डिस्चार्ज हुआ, फिर से चार्ज हो जाएगा, फिर ऐसे एकदम थोड़ा ही डिस्चार्ज होगा, फिर से चार्ज हो जाएगा, फिर थोड़ा ही डिस्चार्ज होगा, और उसके बाद मैं इसको पास करूंगा थ्रू अ फिल्टर। तो अल्टीमेटली व्हाट आई एम गोइंग टू गेट, आई एम गोइंग टू गेट ऐसा वाला कुछ फंक्शन, राइट, जो पिक को डिटेक्ट करेगा। समझ रहे हो क्या बोल रहा हूं मैं यहां कौन सा सर्किट यूज करूंगा, आपको सिर्फ यहां इतना ही जानना है कि मैं यहां पे यूज करूंगा अ पिक डिटेक्टर, जो क्या करेगा, जो फंक्शन है उसके पिक्स को डिटेक्ट करेगा। नाउ माय क्वेश्चन इज, अब वो सर्किट क्या होगा, वो कैसे काम करेगा, वो मैं सब कुछ समझाऊंगा। अभी के लिए आर यू कन्विंस्ड कि ये जो पिक है, ये सब पिक्स हैं, ये पिक्स जो है वो डिटेक्ट होंगे? अब मुझे बताओ अब क्या होगा जब हम यहां आगे बढ़ेंगे तो क्या डिटेक्ट करेगा वो? हमें चाहिए पिक डिटेक्टर, हमें चाहिए पिक डिटेक्टर। सो व्हाट डू यू थिंक, इज इट गोइंग टू फॉलो ये वाला नीचे वाला पाथ? डू यू थिंक सो? ये इसको इसको करेगा, सिर्फ ये इसको फॉलो करेगा? ये पिक्स है, ये जो नीचे वाला है, इज इट पिक? नहीं, वो पिक नहीं है। तो वो किसको फॉलो करेगा? आई थिंक अगर मैं सही कर रहा हूं तो वो इसको फॉलो करेगा। बोलो हाँ कि ना, बोलो हाँ कि ना। हम पिक्स की बात कर रहे हैं, तो आपके जो पिक है वो पिक ये सब है। तो अगर हम बात कर रहे हैं कि हम अगर इसको पास कर रहे हैं, किसको पास कर रहे हैं, किसको पास कर रहे हैं, जो एस ऑफ टी है, अगर हम इसको पास कर रहे हैं थ्रू पिक डिटेक्टर, तो उसका आउटपुट जो है वो क्या मिलेगा आपको, वो क्या मिलेगा आपको? अगर मैं डेस्मोस पे वापस आ रहा हूं तो आपको क्या मिलेगा? बेसिकली आपको मिलेगा क्या, आई में से आपको मिलेगा मोड ऑफ S3। बोलो हाँ कि ना। सॉरी सॉरी, आपको मिलेगा मोड ऑफ S1। बोलो हाँ कि ना। एग्जैक्टली exactly. आपको क्या मिलेगा? आपको मिलेगा मोड ऑफ S1। इफ आई चेंज इसका कलर, इफ आई चेंज इसका कलर, तो आपको ये मिलेगा। बोलो हाँ कि ना। सब लोग ये बात को समझ पाए हो? मैं सिर्फ और सिर्फ जो आपका, ओके ओके ओके, मुझे आपका कंफर्मेशन चाहिए। सबसे पहले सबको ये समझ में आया, सबसे पहले सबको ये समझ में आया, अगर आप हाई फ्रीक्वेंसी कैरियर को मल्टीप्लाई करोगे विथ अ लो फ्रीक्वेंसी मैसेज सिग्नल, तो आपका जो सिग्नल है वो ऐसा कुछ दिखाई देगा। तो पहले सब लोगों को यह समझ में आया है, तो मैं आगे बढ़ता हूं। सभी लोगों को यह समझ में आया? हेलो, ओके। अब अगर मैं इसको पास करूंगा थ्रू अ पिक डिटेक्टर, अगर मैं इसको पास करेगा थ्रू अ पिक डिटेक्टर, देन क्या होगा, वो समझ में आया है? मुझे बताओ आपका जो मैसेज सिग्नल है, वो मैसेज सिग्नल कैसा है? जो मैसेज सिग्नल है वो देखो ऐसा है। अभी जो आपकी स्क्रीन पे आ रहा है जो मैसेज सिग्नल है, उसके अंदर पॉजिटिव हाफ साइकिल है। बोलो हाँ कि ना। जो मैसेज सिग्नल है उसमें पॉजिटिव हाफ साइकिल है, तो बोलो हाँ। उसमें नेगेटिव हाफ साइकिल है, बोले हाँ। मगर जब आप इसको पास करोगे थ्रू एनवेलप डिटेक्टर, उसका एक और नाम है, क्या है? एनवेलप डिटेक्टर और अपिक डिटेक्टर। जब आप इसमें से, जब आप ये फंक्शन को, जब ये आप आपका जो एम्पलीट्यूड मॉड्यूलेटेड सिग्नल है इसको पास करोगे थ्रू पिक डिटेक्टर, तो आपको क्या मिलेगा? ये मिलेगा। बोलो हाँ कि ना। तब आपको ये मिलेगा। बोलो हाँ कि ना। अच्छा, सही बात है। सब लोग समझ रहे हो क्या है ये? सब लोग ये समझ रहे हो आपको ये मिलेगा? अगर आपको ये मिलने वाला है, अगर आपको ये मिलने वाला है, ओके, हाँ बताओ क्या डाउट है?
अविश क्या डाउट है? हेलो सर। हाँ बताओ। सर वो जो पॉजिटिव साइकिल है ना मैसेज सिग्नल की, वो तो हाँ मतलब ऐसे वो एनवेलप वो पता चला, लेकिन सर वो नेगेटिव साइकिल में जस्ट बिकॉज वो नेगेटिव साइड मतलब जो भी पॉजिटिव साइड में जो भी एक्शन हो रही है उसका एकदम ऑपोजिट हो रहा है, इसकी वजह से जो मैसेज सिग्नल है वो भी ऐसे एनवेलप की तरह बिहेव कर रहा है, नहीं। मतलब वो हाँ, पूरा। अविश अविश एक एंड बार आप, हाँ। एंड में बात करते ओके हैं, एंड में बात करते हैं। ओके सर ओके। अगर हम यहाँ पे बात कर रहे हैं तो क्या होगा, लाइक अगर पहले ये समझ लो कि अगर यहाँ आप एनवेलप की बात कर रहे हो तो एनवेलप यानी क्या, यहाँ पे दो एनवेलप है, एक जो है वो है पॉजिटिव एनवेलप और एक जो है वो है नेगेटिव एनवेलप। अगर मैं यहाँ आपको नेगेटिव एनवेलप दिखा रहा हूं तो आई में से नेगेटिव एनवेलप ये रहा, जो ब्लू कलर में है वो है आपका नेगेटिव एनवेलप और जो ब्लैक कलर में है वो है आपका पॉजिटिव एनवेलप। आई होप कलर इज विजिबल टू यू। ऐसा क्यों बोल रहे हैं हम लोग, क्योंकि जो पॉजिटिव एनवेलप है इट इज एग्जैक्टली एम ऑफ टी, इट इज एग्जैक्टली एम ऑफ टी, मगर जो आपका ब्लू वन है इट इज माइनस ऑफ एम ऑफ टी। आर यू कन्विंस विद दैट? जो ब्लैक कलर का है वो है आपका पॉजिटिव एनवेलप, जो है आपका पॉजिटिव एम ऑफ टी, मगर जो ब्लू कलर का है वो है आपका एग्जैक्टली 180 डिग्री फेस शिफ्टेड मैसेज सिग्नल, तो वो है आपका नेगेटिव एनवेलप। नाउ आई होप यू आर क्लियर विथ नेगेटिव एनवेलप एंड पॉजिटिव एनवेलप। बट नाउ द थिंग इज, इफ आई पास दिस एम्पलीट्यूड मॉड्यूलेटेड सिग्नल थ्रू अ पिक डिटेक्टर, तो आपका जो आउटपुट रहेगा पिक डिटेक्टर का वो ये आएगा। बोलो हाँ कि ना, बोलो हाँ कि ना। हाँ बेटा। हाँ पृथ्वीराज मैं समझाऊंगा, मैं आपको पूरा समझाऊंगा इसका वर्किंग। अभी के लिए उसको रहन दो, अभी सिर्फ और सिर्फ इसके ऊपर ध्यान दो कि जो पिक डिटेक्टर है उसका आउटपुट ये आएगा। बोलो हाँ कि ना। तो मुझे ये बताओ, इज इट एम ऑफ टी? इज इट एम ऑफ टी? ये ये चाहिए हमें। हाँ ये चाहिए हमें, ये एम ऑफ टी है हमारा, ये नहीं चलेगा। देखो अभी कंपेयर करो, अभी कंपेयर करो तो ये नहीं चलेगा। क्यों नहीं चलेगा? अच्छा एक बात समझ लो, एक बात समझ लो क्या मैं बोल रहा हूं। ये जो है ये आपका मॉड्यूलेट हो गया, ये मॉड्यूलेट हो गया, आपने ट्रांसमिट कर लिया। अब ये मैं बात कर रहा हूं एट रिसीवर, एट रिसीवर। तो मुझे ये बताओ, आपको इतना दिख रहा है कि अगर हम ये हाई फ्रीक्वेंसी को, ये हाई फ्रीक्वेंसी को अगर हम पास कर रहे हैं थ्रू पिक डिटेक्टर, तो जो उसका आउटपुट आ रहा है वो लो फ्रीक्वेंसी आ रहा है। ओ तेरी, हाँ सर, अगर हम ये हाई फ्रीक्वेंसी कैरियर को पास करेंगे थ्रू पिक डिटेक्टर, तो जो उसका आउटपुट आ रहा है पिक डिटेक्टर का वो लो फ्रीक्वेंसी आ रहा है। बोलो ये दिखा? हाँ बोलो ये दिखा आपको? हाँ सर बात तो सही कर रहे हो आप, सबको दिख रहा है ये चीज। बेटा मैं आपको जो समझा रहा हूं इट इज नॉट मैथ्स, इट इज द मोटिवेशन ऑफ एम्पलीट्यूड मॉड्यूलेशन, कि वो आया ही क्यों, उसका काम क्या है। तो मुझे आपका साथ चाहिए, तो मुझे बताओ आपको ये समझ में आ रहा है? तो अल्टीमेटली मैं ऐसा बोल सकता हूं कि अगर मैं हाई फ्रीक्वेंसी कैरियर को, अगर मैं हाई फ्रीक्वेंसी कैरियर को अगर मैं उसको पास करूंगा थ्रू अ पिक डिटेक्टर, तो इट इज लाइक माय डीमॉड्यूलेशन प्रोसेस। सर क्या बोल रहे हो? अगर मैं ये हाई फ्रीक्वेंसी एम्पलीट्यूड मॉड्यूलेटेड सिग्नल को पास कर रहा हूं थ्रू पिक डिटेक्टर, तो हाँ बेटा मेरी बात सुनो, सिग्नल लॉस हुआ है बिल्कुल सही है, मेरी बात तो सुनो। मगर आर यू फीलिंग इट कि यहां पे डिमॉड्यूलेशन हुआ है? इसका जो आउटपुट है वो आपको लो फ्रीक्वेंसी मिलेगा और ये आपका आई में से आपका, हाँ ये मैसेज सिग्नल नहीं है, मगर क्या है कोई बता पाएगा? इट इज मैसेज सिग्नल, इट इज नॉट योर मैसेज सिग्नल, मगर क्या है ये बता पाओगे? एग्जैक्टली इट इज योर मॉड्यूलस ऑफ मैसेज सिग्नल। तो इससे काम नहीं चलेगा।
इससे काम नहीं चलेगा। चलेगा ना, मॉड्यूलस ऑफ एम ऑफ टी आ रहा है या एम ऑफ टी आ रहा है, क्या फर्क पड़ेगा? मॉड्यूलस ऑफ एम ऑफ टी आ रहा है या एम ऑफ टी आ रहा है, क्या फर्क पड़ेगा? आई थिंक मुझे तो फर्क नहीं पड़ना चाहिए, मेरे कान तो सुन लेंगे। क्या बोलते हो, फर्क पड़ेगा? अच्छा, फ्रीक्वेंसी डबल हो जाएगी, उससे क्या होगा? इंफॉर्मेशन चेंज हो जाएगी। अच्छा, ऐसा क्यों? ऐसा क्यों? ये बात सिग्नल्स पढ़ के बैठ गए मगर सिग्नल्स का एप्लीकेशन नहीं मालूम है। बताओ बताओ, क्या होगा यहाँ पे? स्पीच स्पीड इंक्रीज हो जाएगा, उससे क्या होगा? कान में लगेगा है, टाइम पीरियड हाफ हो जाएगा, उससे क्या होगा? मुझे वही चाहिए। फ्रीक्वेंसी कंपोनेंट चेंज हो जाएंगे, अच्छा उससे क्या होगा? सब स्पीड में सुनाई देगा, कुछ भी पृथ्वीराज नहीं। स्केलिंग हो रही है, अरे कुछ भी नहीं रे। इसका एग्जैक्ट रीजन कौन बता पाएगा? मैसेज चेंज हो गया, अच्छा पृथ्वीराज कैसे? प्रामाणिक कैसे, तो समझा पाएगा? मैसेज चेंज कहां से हो गया? एम ऑफ टी का मोड ऑफ एम ऑफ टी हो गया, क्या फर्क पड़ेगा? तू करेगा अनम्यूट अपने आप को? अच्छा, नेगेटिव हाफ साइकिल वाला इंफॉर्मेशन चला गया। बाप रे बाप, अरे रीजन तो आप ऐसे दे रहे हो जैसे आर्ट्स वाले देते होंगे, आर्ट्स या कॉमर्स वाले। वो तो उसको भी दिखता है, कॉमर्स वाले को, कि यहाँ जो नेगेटिव हाफ साइकिल है वो पॉजिटिव हो गया, फ्रीक्वेंसी कम हो गया या ज्यादा हो गया। ये सभी रीजंस दे रहे हो आप कॉमर्स वाले। रियल सिग्नल, हाँ रियल ही है भाई, अभिषेक रियल है एम ऑफ टी। हाँ प्रामाणिक, कैन यू अनम्यूट योरसेल्फ? तू सही बोल रहा है प्रामाणिक, क्या माइक का प्रॉब्लम है? हेलो सर। हाँ बताओ। सर उसका फ्रीक्वेंसी रिस्पांस चेंज हो गया है, तो जो हमको सेंड करना था उसके बदले कुछ और ही मिला है। मतलब जो एक्सपेक्टेड था उसके अलावा कुछ मिला है। मतलब हमको एक्सपेक्टेड ये साइन था पर हमको मिला ये रेक्टिफाइड साइन, तो मतलब उसका फ्रीक्वेंसी रिस्पांस ही अलग है, तो वो सिग्नल ही पूरी बदल गई। एग्जैक्टली यहाँ पे जो कंसेप्ट अप्लाई होगा वो कंसेप्ट अप्लाई होगा फोरियर सीरीज का। ये पीरियोडिक सिग्नल है, तो आपको भेजना था ए, मगर जब आप इसको डिमोड्यूलेट कर रहे हो तब आपको मिल रहा है हाँ रेक्टिफाइड आउटपुट। सिग्नल का शेप चेंज हो गया है तो उसके अंदर जो हार्मोनिक्स लगेंगे वो भी चेंज हो गए। जो आप रिसीव करोगे वो रिसीव करोगे ए आ ई ओ, तो आपका पूरा इंफॉर्मेशन लॉस है। बात समझ रहे हो क्या है यहाँ पे? यहाँ पे आंसर क्या चाहिए था मुझे? हार्मोनिक्स चेंज हो रहे हैं। अगर फोरियर सीरीज के लिए ये पीरियोडिक फंक्शन है तो पहले तो इसका फोरियर ट्रांसफॉर्म में बात नहीं करोगे, आप बात करोगे इसका फोरियर सीरीज के अंदर, या अगर आप बात कर रहे हो फ्रीक्वेंसी रिस्पॉन्स के अंदर तो हाँ डेफिनेटली इसके हार्मोनिक्स चेंज हो जाएंगे। हार्मोनिक्स चेंज हो जाएंगे तो इसकी वजह से आपको जो ओरिजिनल इंफॉर्मेशन ट्रांसमिट करना है वो रिसीव नहीं होगा। तो अब बताओ ये चलेगा? तो अब बताओ ये चलेगा? हाँ चलेगा ये? बिल्कुल नहीं चलेगा। तो मुझे बताओ इसका सॉल्यूशन क्या है? अगर मैं आपको बात बताऊं तो जो पिक डिटेक्टर है, जो पिक डिटेक्टर है वो है सबसे सस्ता वाला डीमॉड्यूलेटर। जो पिक डिटेक्टर है वो है सबसे सस्ता वाला डीमॉड्यूलेटर। हाँ तो बताओ यहां आउटपुट क्या लिख पाएंगे? अगर हम एस ऑफ टी को पास करेंगे थ्रू पिक डिटेक्टर तो आउटपुट क्या होगा, कोई बता पाएगा मुझे? अगर हम एस ऑफ टी को पास करेंगे, बहुत सही, आउटपुट क्या होगा? मोड ऑफ एम ऑफ टी। बोलो हाँ कि ना? मोड ऑफ एम ऑफ टी। सबको समझ में आया है ये चीज? सबको ये चीज समझ में आया है? एंड बिलीव मी, आपको कोई भी ऐसा ग्राफ से नहीं समझाएगा। आपको समझ में आया है ये चीज? शैल आई मूव अहेड? ऐसा ना हो कि ये समझने के चक्कर में आपको कुछ समझ में ही ना आया हो। आपको ये समझ में आया है? शैल आई मूव अहेड? सब कुछ दिखाई दिया? सबको सब कुछ दिखाई दिया?
तो इसका सॉल्यूशन क्या है? इसका सॉल्यूशन क्या है? मुझे यूज तो करना ही है। तो जो एक प्रोबेबल सॉल्यूशन है वो मैं आपके सामने रखने जा रहा हूं। तो आपका ध्यान रखिएगा कंप्यूटर स्क्रीन के ऊपर, और मुझे बताओ कि क्या आप लोग ये चीज फॉलो कर पा रहे हो जो मैंने ड्रॉ किया। वो जो मैंने ड्रॉ किया है वो आप लोग फॉलो कर पाए हो? अगर फॉलो कर पाए हो तो मुझे बताओ कि ये चीज है क्या? ये जो चीज मैंने यहां पे ड्रॉ किया है वो है क्या? कोई मुझे बता पाएगा मैंने यहां पे जो ड्रॉ किया है वो क्या है? बहुत सही पृथ्वीराज, मैंने क्या किया है, जो मेरा मैसेज सिग्नल था उसके अंदर डीसी शिफ्ट प्रोवाइड किया है। बोलो हाँ कि ना। जो मैसेज सिग्नल है मैंने उसको, ये मेरा ओरिजिनल मैसेज सिग्नल है, मैंने उसको डीसी शिफ्ट प्रोवाइड किया है। कितना, मगर कितना? मैंने कितना डीसी शिफ्ट प्रोवाइड किया? 1 का, बराबर। अब देखिए करते हैं यहां पे जादू। टेन 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 टेन। सर ये क्या हुआ? सर ये क्या हुआ? टेन 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 टेन। समझ गए? समझे कि नहीं क्या हुआ? अब अगर आप इसको पास करोगे थ्रू पिक डिटेक्टर तो क्या होगा? ओ तेरी, सर मजा आ गया, एकदम मजा आ गया। हाँ, रिसीवर एंड पे -1 ऐड करना पड़ेगा पृथ्वीराज, मगर रिसीवर एंड पे अगर मैंने लगा दिया कैपेसिटर तो? हाँ सर, जो कैपेसिटर है वो डीसी को ब्लॉक करता है। टेन 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 टेन। समझे कि नहीं? सर क्या बोल रहे हो आप? ओ माय बाप। अब अगर आप इसको पास करोगे थ्रू पिक डिटेक्टर देन व्हाट डू यू थिंक क्या होगा? अबे आपको झपका नहीं? आप बिल्कुल नहीं समझे इसको कि मैंने क्या किया? हेलो सर, 0 से नीचे है ना नेगेटिव हाफ साइकिल? हाँ बेटा, नेगेटिव हाफ साइकिल पूरा नीचे है और जो पॉजिटिव हाफ साइकिल है वो ऊपर है। पूरा एम ऑफ टी ट्रैक हो जाएगा। बोलो हाँ कि ना। हाँ, मैं ऐसा नहीं बोल रहा हूं कि एम ऑफ टी होगा, इट वुड बी 1 प्लस एम ऑफ टी। वहां डीसी सिग्नल है मगर हम उसको निकाल सकते हैं बाय यूजिंग कैपेसिटर, बिकॉज व्हाट डू वी नो, कैपेसिटर ब्लॉक्स डीसी। बोलो हाँ कि ना। मजा आया? हाँ? ये है मेन मोटिवेशन फॉर एम्पलीट्यूड मॉड्यूलेशन। सब लोग समझ रहे हो ये बात को? S4 थोड़ा बताऊं? हाँ बताओ, S4 क्या है बेटा? S4 क्या है अभिषेक लेंगे? देखो मैंने क्या किया बेटा, अब इसको स्टेप बाय स्टेप समझते हैं। S1 और ये S2, एक तो क्या है आपका लो फ्रीक्वेंसी मैसेज सिग्नल है, इसको आप सीधा मल्टीप्लाई कर रहे हो विद हाई फ्रीक्वेंसी कैरियर सिग्नल, इसको बोलते हैं DSB-SC। क्या बोलते हैं इसको? इसको बोलते हैं DSB-SC, डबल साइड बैंड सप्रेस कैरियर। सिंपल, अगर आप हाई फ्रीक्वेंसी कैरियर को मल्टीप्लाई कर रहे हो विथ लो फ्रीक्वेंसी मैसेज सिग्नल, इसको बोलते हैं DSB-SC, डबल साइड बैंड सप्रेस कैरियर। But the biggest disadvantage of DSB-SC is you cannot use peak detector. You cannot use peak detector to demodulate DSB-SC. अगर आप DSB-SC को पास करोगे थ्रू एनवेलप डिटेक्टर या पिक डिटेक्टर, आपको क्या मिलेगा? अगर आप DSB-SC को पास करोगे थ्रू पिक डिटेक्टर तो क्या मिलेगा आपको? आपको मिलेगा मोड ऑफ एम ऑफ टी, एंड इट इज डेफिनेटली नॉट एम ऑफ टी, तो मेरा पर्पस सॉल्व नहीं होगा। बोलो हाँ कि ना। बोलो हाँ कि ना बेटा। DSB-SC क्या है? इज इट मॉड्यूलेटेड सिग्नल? यस, इट इज अ मॉड्यूलेटेड सिग्नल, मगर
ये जो प्रॉब्लम है इसको निकालने के लिए मैंने क्या किया अभिषेक, बिफोर मॉड्यूलेशन जो मैसेज सिग्नल है उसमें मैंने डीसी शिफ्ट प्रोवाइड कर लिया। कितना कितना 1 वोल्ट का। इससे क्या हुआ कि जो मैसेज सिग्नल है वो मेरा डीसी शिफ्ट होके ऊपर आ गया। ओके, अगर मैं लॉजिकली बताऊं, चलिए आते हैं यहां पे ये वाला। अभिषेक मुझे ये बताओ, यहां पे हमारा पॉजिटिव एनवेलप क्या है? इन केस ऑफ दिस हमारा पॉजिटिव एनवेलप क्या है? ओके, मैं कुछ कुछ क्वेश्चन पूछ रहा हूं। जो पॉजिटिव एनवेलप है हमें उसको ट्रैक करना है या जो नेगेटिव एनवेलप है हमें उसको ट्रैक करना है? बताओ हमें किसको ट्रैक करना है? हमें किसको ट्रैक करना है? नहीं नहीं, ऑल्टरनेट नहीं, अभी अभी के लिए, अभी दोनों नहीं, ऐसे नहीं। मैं ये बोल रहा हूं हमें अल्टीमेटली ट्रैक किसको करना है, पॉजिटिव एनवेलप को या ये नेगेटिव एनवेलप को? व्हाट डू वी नीड, एम ऑफ टी और माइनस एम ऑफ टी? ऑब्वियसली व्हाट डू वी नीड, एम ऑफ टी। तो मुझे ये बताओ जो एम ऑफ टी है वो कहां पे है? यहाँ पे जो पॉजिटिव एनवेलप है यहां पे है। तो अब मुझे यहाँ पे ये बताओ जो पॉजिटिव एनवेलप है, जो पॉजिटिव एनवेलप है उसका, अगर मैं यहां दिखा रहा हूं आपको, ओके, जो पॉजिटिव एनवेलप है उसका अभी मैक्सिमम वैल्यू कितना है? अभी जो पॉजिटिव है, हाँ एग्जैक्टली, कितना है मैक्सिमम वैल्यू? इट इज 1। और जो नेगेटिव वैल्यू है वो कितना है मैक्सिमम? ओके, आई में से जो पॉजिटिव एनवेलप है उसका मिनिमम वैल्यू कितना है? बहुत सही, बहुत सही, मिनिमम वैल्यू -1 है, राइट। तो मैथ्स क्या बोलता है या लॉजिकल रीजनिंग क्या बोलता है, मेरी बात ध्यान से सुनिएगा। अगर मैंने कुछ ना कुछ करके ये जो नेगेटिव पोर्शन है, जो मिनिमम वैल्यू है, अगर मैंने उसको पहुंचा दिया कहां पे? 0 के पास। अगर मैंने ये जो नेगेटिव वैल्यू है -1 उसको पहुंचा दिया एट 0, देन व्हाट डू यू थिंक, अगर मैं उसको पास करूंगा थ्रू एनवेलप डिटेक्टर और पिक डिटेक्टर, देन डोंट यू थिंक कि तुझे मिल जाएगा एम ऑफ टी? सोच के बताओ। अभी जो पॉजिटिव एनवेलप का जो मिनिमम वैल्यू है वो है -1। कुछ ना कुछ करके अगर ये वैल्यू पहुंच गया 0 पे, तो अगर जो जो मैंने किया, जो मैंने किया कहां किया? देख यहां किया, यहां किया। मैंने क्या किया, जो नेगेटिव जो जो मिनिमम वैल्यू था वो मिनिमम वैल्यू को एटलीस्ट 0 के पास पहुंचा दिया। अब अगर मैं इसको मल्टीप्लाई करूंगा तो देख ले बेटा, देख ले बेटा क्या हुआ। जो पॉजिटिव एनवेलप है वो पूरा का पूरा यही है। लेट मी यूज अ ब्लैक कलर ओवर हियर टू लुक एट इट। जो पॉजिटिव एनवेलप है वो पूरा का पूरा ऊपर ही है, वहां नेगेटिव में जा ही नहीं रहा है। और अगर वो नेगेटिव में जा ही नहीं रहा है तो क्या होगा? अगर वो नेगेटिव में जा ही नहीं रहा है तो अगर हम इसको डिटेक्ट करेंगे तो हमें क्या मिलेगा? पूरा का पूरा एम ऑफ टी मिलेगा। सभी लोगों को ये समझ में आया? सभी लोगों को ये समझ में आया? बोलो हाँ कि ना। ये जबरदस्त मैथ्स है, जबरदस्त मैथ्स है, एंड बिलीव मी आपको ये मैथ्स कोई नहीं दिखाएगा। ये बात पक्का मुझे पता है, मैंने भी पढ़ा है भाई कॉलेज में। ओके, अगर ये बात से सहमत हो तो मैं यहां पे कुछ एक और चीज करता हूं। हाँ, मजा आ रहा है, समझ रहे हो सब कुछ? यहाँ पे 44 स्टूडेंट्स हैं, आप सभी लोग समझ रहे हो, मजा आ रहा है आपको, कंसेप्ट वाइज आगे बढ़ रहे हो? यार एक तो आप लोग रिप्लाई नहीं करते हो बहुत जल्दी, आज पता नहीं क्या हो गया आपको। ओके, अगर ये समझ रहे हो तो मैं यहाँ पे एक चीज कर रहा हूं, आई थिंक आपके मोबाइल में आपको दिखेगा, आपके मोबाइल में आपको दिखेगा। तो अब मुझे बताइएगा कि जो मैं करूंगा उससे क्या होगा, और ये हमारे काम का है कि नहीं है, ये सब कुछ आप बताओगे। हाँ, बताओ तो ये काम का है हमारा, ये S6
S6 जो है वो है 0.5 प्लस S1। इज इट काम का हमारे लिए? इज इट काम का हमारे लिए? अच्छा, क्यों नहीं काम का है? क्यों नहीं काम का है? अब तो काफी होशियार हो गए। क्योंकि इसका रीजन क्या है? अभी भी जो इसका मिनिमम वैल्यू है वो तो नेगेटिव ही है। हा सर मजा आ गया, सर मजा आ गया। क्या दिख रहा है? क्या दिख रहा है? अभी भी जो इसका मिनिमम वैल्यू है वो तो नेगेटिव ही है, समझ रहे हो? अभी भी उसका जो नेगेटिव वैल्यू है पॉजिटिव एनवेलप का वो तो नेगेटिव ही है, तो हम यहां भी इसको डिटेक्ट नहीं कर पाएंगे। समझ रहे हो? अच्छा, अगर इसको समझे हो तो सर को एक और चीज है आपको दिखाने की। ये हेल्प करेगा? ये हेल्प करेगा? बताइए मेरे को, ये हेल्प करेगा? इज इट वर्थ इट? इज इट वर्थ इट? आय है, क्यों वर्थ इट है ये क्यों वर्थ इट है? क्योंकि इसकी वजह से क्या होगा, जो नेगेटिव वैल्यू है, बहुत बाप देखो, देखो क्या होगा, जो मिनिमम वैल्यू है वो भी आपका पॉजिटिव आ गया है, तो ये काम का है। सबको समझ में आया? सबको समझ में आया है? सब लोग समझ रहे हो ये बात को? सबको दिमाग में जा रही है ये बातें? हाँ, अच्छा। मगर अब मेरा प्रॉब्लम ये है कि मेरा प्रॉब्लम ये है कि let me take some other graph over here। मेरे पास एक फंक्शन है यहाँ पे, देखिएगा, आराम से देखिएगा। अब सॉल्यूशन आप लोग बताओगे मुझे। आप अभी एम ही समझ रहे हो और पूरा ढंग से समझ रहे हो, है ना? चलिए, अभी प्रॉब्लम ये है ना कि ऐसा कुछ है यार, मैं बहुत गंदा फंसा हूं यहाँ पे, पता नहीं क्या करूं, कुछ समझ में नहीं आ रहा। अभी ऐसा कुछ है, कैरियर तो वही है, लाइक वी कैन गो फॉर द कैरियर। सो कैरियर इज अगेन हमारा वही जो पहले लिया था, ये कैरियर है, राइट? तो अब मुझे कौन बताएगा यहाँ क्या करना पड़ेगा, यहाँ कितना उठाना पड़ेगा, इसको कौन बताएगा? ओ हो, कितना उठाना पड़ेगा? बाप रे बाप, आपने तो खुश कर दिया मुझे। मिनिमम, स्नेहा एक्सीलेंट, मिनिमम 2 उठाना पड़ेगा मुझे, इसको मिनिमम 2 उठाना पड़ेगा। मगर बच्चा लोग एक प्रॉब्लम है, बच्चा लोग एक प्रॉब्लम है। कंस्ट्रेन ये है कि मैं उठा तो पाऊंगा सिर्फ 1, मैं 1 ही उठा पाऊंगा। तो अब मैं क्या करूंगा जिससे कि मुझे, मैं आराम से यूज कर पाऊं मेरा एनवेलप डिटेक्टर? ऐसा तो मैं क्या करूं यार, ये कंस्ट्रेन है। डिवाइड करो मैसेज सिग्नल को बाई 2। ओ बाप रे बाप, बाप रे बाप, मैं फैन हो गया आप सबका, एकदम से फैन हो गया मैं आप सबका। ये चलेगा, ये चलेगा, ये चलेगा। और इसके बाद आई कैन गो फॉर जो भी आप बोल रहे थे, क्या बोल रहे थे आप, जो बोल रहे थे S2 इंटू S3। अब चलेगा, बोल लो भाई लोग बहन लोग, अब ये चलेगा। ये क्या किया मैंने, S2 इंटू S3, S3 यहाँ पे रह गया, हाँ चलेगा, मगर ये कैसे, ऐसा कैसे आया? ओके, मैंने S2 का भी 2 लिया है, सॉरी। हाँ, अब हो गया, देखो चलेगा, ये चलेगा, ये है ना? बाप रे बाप, कितने कितने खतरनाक हो आप लोग। तो यहीं से जन्म होता है किसका, यहीं से जन्म होता है एएम का, जो है एम्पलीट्यूड, एम्पलीट्यूड मॉड्यूलेटेड सिग्नल। तो चलिए चालू करते हैं हमारा जर्नी ऑफ सबसे पहला मॉड्यूलेशन स्कीम, जो है एम्पलीट्यूड मॉड्यूलेशन स्कीम। चलो, मजा आया आपको?
हाँ, समझ में आया सब कुछ? अभी आपको ये पूरा समझ में आ जाएगा एम्पलीट्यूड मॉड्यूलेशन क्या है। व्हाट इज एम्पलीट्यूड मॉड्यूलेशन, मुझे ड्रॉ करना नहीं पड़ेगा अभी। हाँ, आपको नोट्स में ये सब ग्राफ मिल जाएंगे, सो डोंट वरी। एम्पलीट्यूड मॉड्यूलेशन, चलिए आपका ध्यान सबका यहाँ पे। तो बताओ हम क्या करेंगे, इसका इक्वेशन क्या होना चाहिए? एस ऑफ ए एम टी, इसका इक्वेशन क्या होना चाहिए? देयर मस्ट बी अ कैरियर सिग्नल, बोलो हाँ कि ना? देयर मस्ट बी अ कैरियर सिग्नल। तो क्या किया हमने, ए सी कॉस ऑफ 2 पाई एफ सी टी, राइट? अब मुझे बताओ हम क्या करेंगे, अब हम क्या करेंगे? यहां पे डीसी शिफ्ट प्रोवाइड करेंगे, वो कितना होगा, 1 जितना ही होगा। जो डीसी शिफ्ट होगा वो 1 जितना ही होगा। प्लस क्या करेंगे बताओ, चलो प्लस क्या करेंगे, प्लस क्या होगा, एम ऑफ टी होगा। बहुत सही, प्लस क्या होगा, एम ऑफ टी होगा। मगर हमने लास्ट में क्या देखा कि एम ऑफ टी को हमें एम्पलीफाई या तो फिर उसको अटेन्यूएट करना पड़ेगा। तो उसके लिए यहां पे फैक्टर होता है, वो होता है के ए। बहुत सही, के ए एम ऑफ टी। सबको ये बात समझ में आई? एकदम भारी। यहां पे जो के ए है, ये के ए को क्या बोलते हैं, इसको क्या बोलते हैं, एम्पलीट्यूड, एम्पलीट्यूड मॉड्यूलेटर, एम्पलीट्यूड मॉड्यूलेटर सेंसिटिविटी, सेंसिटिविटी। वो अल्टीमेटली क्या करेगा, हमें यहां ये पता है कि जो डीसी शिफ्ट प्रोवाइड करेंगे वो 1 का ही करेंगे, जो डीसी शिफ्ट प्रोवाइड करेंगे वो 1 का ही करेंगे। मगर हमें जो रिजल्टेंट के ए एम ऑफ टी है, इसका मिनिमम वैल्यू अल्टीमेटली 0 के ऊपर ले जाना है। बोलो हाँ कि ना? सबको ये बात समझ में आई? जो पूरा कहानी अब तक कर रहा था वो पूरा समझ में आया? भाइयों बहनों, हेलो बे यार, एक तो रिएक्शन नहीं देते हो। समझ में आया पूरा? हाँ, ये रटना बिल्कुल भी नहीं पड़ेगा ना। एम ऑफ टी का एम्पलीट्यूड कैसे चेंज करेंगे, के पृथ्वीराज, के जो है वो स्केलिंग फैक्टर है, वो स्केल करेगा या स्केल डाउन करेगा अकॉर्डिंग टू एम ऑफ टी। ये कांस्टेंट है और वो चेंज होता रहेगा। एम्पलीट्यूड मॉड्यूलेटर सेंसिटिविटी अकॉर्डिंग टू एम ऑफ टी, ये के जो है वो अपने हिसाब से चेंज होता रहेगा। राइट, नाउ शैल आई मूव अहेड? हाँ, क्लियर है पृथ्वीराज? ओके, चलिए बेटा, बस पप्पा काम काम खत्म है। अब आप लोग ही बहुत सारी चीजें करोगे। तो चलिए पहले लेते हैं सिंगल टोन एएम, सिंगल टोन एएम। बताइए, सिंगल टोन एएम होगा तो उसमें क्या होगा? सिंगल टोन एएम होगा तो उसमें क्या होगा, कोई बताएगा? हम एम ऑफ टी क्या लेंगे, हम एम ऑफ टी क्या लेंगे? आई में से हम लेंगे एएम, लिखना चालू रखिएगा आप भी, एएम कॉस ऑफ 2 पाई एफ एम टी। अगर हमने ये ले लिया है तो बताओ हमारा एएम का एक्सप्रेशन क्या आएगा? ये सभी टाइम डोमेन के अंदर है, सो डोंट गेट कंफ्यूज विद दैट। ये क्या होगा, ए सी कॉस ऑफ 2 पाई एफ सी टी। बताओ अब क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा 1 प्लस के ए एम, के ए एम, और ये हो जाएगा कॉस ऑफ 2 पाई एफ एम टी। बोलो हाँ कि ना? यहां पे जो के ए एम है, ये जो है के ए एम, इसको बोलते हैं म्यू। व्हाट इज म्यू? म्यू इज मॉड्यूलेशन इंडेक्स, म्यू इज, आई में से, मॉड्यूलेशन इंडेक्स, राइट? सो म्यू इज मॉड्यूलेशन इंडेक्स। वो क्या है आपका, के ए एम।
चलिए अब पूरा मैथ्स है जो आप लोग करोगे। चलिए अगर मैं इसको लेता हूं तो क्या होगा, अगर मैं इसको खोल रहा हूं तो ये क्या हो जाएगा, ए सी आई में से कॉस ऑफ 2 पाई एफ सी टी, कॉस ऑफ 2 पाई एफ सी टी प्लस ये क्या हो जाएगा, आई में से ए सी म्यू कॉस ऑफ 2 पाई एफ सी टी इंटू कॉस ऑफ 2 पाई एफ एम टी। बोलो हाँ कि ना, बोलो हाँ कि ना, ये होगा। सबको समझ में आया है ये चीज? अब तो सिंपल है भाई, अब तो मैथ्स है, अब तो मैथ्स है। नाउ व्हाट आई वांट फ्रॉम यू गाइस, कैन यू सॉल्व दिस एंड गेट इसका फ्रीक्वेंसी डोमेन। चलिए टेक योर टाइम और ये पूरा सॉल्व कीजिए और मुझे इसका फ्रीक्वेंसी डोमेन लाके बताइए। चलिए मुझे व्हाट्सएप कीजिएगा इसका फ्रीक्वेंसी डोमेन। अगर मैं इसको पूरा खोल रहा हूं तो क्या खुलेगा, ये खुलेगा कॉस ऑफ 2 पाई ए सी कॉस ऑफ 2 पाई एफ सी टी प्लस, बोलो यहां क्या करेंगे, यहां क्या करेंगे, नहीं नहीं नहीं, वन मत लो, रखो पूरा, काम का है मेरा वो पैरामीटर। ये क्या करेंगे बेटा, यहां पे ऐसा हो जाएगा ए सी म्यू बाई 2 एग्जैक्टली 2 सी सी। चलिए आप भी सॉल्व कीजिए, मैं चुप रह के सॉल्व कर रहा हूं और मुझे इसका फ्रीक्वेंसी डोमेन आप लोग लाके बताओ। इसका फ्रीक्वेंसी डोमेन मुझे आप लोग ही भेजोगे, मैं कुछ नहीं करूंगा। चलिए गुड आंसर फ्रॉम पुष्कर। Let me stop presenting right now so that I can see your answers. पुष्कर एक बार एम्पलीट्यूड्स चेक करो, गलत है एम्पलीट्यूड्स। फ्रीक्वेंसी रिस्पॉन्स इज करेक्ट बट एम्पलीट्यूड्स आर रॉन्ग। गुड गुड प्रामाणिक, एक्सीलेंट, गुड। ओके सेम फॉर नेगेटिव। पूजन, पूजन चेक करो एम्पलीट्यूड्स, गलत है एम्पलीट्यूड्स, चेक करो एम्पलीट्यूड एक बार। ओके देवेंद्र, गुड गुड देवेंद्र, एक्सीलेंट, सही है। हर्षिल, एक्सीलेंट हर्षिल, गुड। पुष्कर करेक्ट है जी, एक्सीलेंट, अभी सही है। ओके अभिषेक, अभिषेक बिल्कुल बिल्कुल सही, एक्सीलेंट। अविश, अविश, ओके गुड गुड, सही है। यश, चांगा,
बिल्कुल सही, बिल्कुल सही, एक्सेलेंट. सो एटलीस्ट यू पीपल आर फेमिलियर विद द फ्रीक्वेंसी रिस्पॉन्स, और आपको समझ में तो आ रहा है. एक्सीलेंट. प्रत्युष, बहुत सही, बहुत सही, एक्सीलेंट, एक्सीलेंट. प्रत्युष, फ्रीक्वेंसी कंपोनेंट्स देखो एक बार, कुछ गलती है देखो प्रत्युष. एफसी कहां पे होगा, एफसी प्लस एफएम कहां पे होगा, देखो एक बार ढंग से देखो. ओके स्नेहा, गुड 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 स्नेहा, एक्सीलेंट. पृथ्वीराज बिल्कुल सही है. रितेश, रितेश गुड, एक्सीलेंट. नहीं रितेश, एक बार चेक करो एम्पलीट्यूड्स, थोड़ी गलती है वहां पे इन एम्पलीट्यूड्स. आपने लिखा नहीं है एफसी प्लस एफएम पे क्या है और एफसी माइनस एफएम पे क्या है मैग्नीट्यूड. और जो म्यू है बेटा, म्यू ऑलवेज लेस देन 1 होगा, ये मैं बताना भूल गया आपको, बट ओके इट्स ओके. जो मॉड्यूलेशन इंडेक्स है वो ऑलवेज लेस देन 1 होगा. इट वुड बी फ्रॉम 0 to 1. इट वुड बी फ्रॉम 0 to 1. ओके निकिता, निकिता नहीं. अच्छा आपने पॉजिटिव के लिए निकिता एक बार ये चेक करो, एम्पलीट्यूड्स चेक करो निकिता. अभी कोई अननोन नंबर है मेरे पास, ये कौन है. तन्मय, तन्मय चेक करो, एम्पलीट्यूड्स चेक करो. फ्रीक्वेंसी डोमेन में आप लोग गलती कर रहे हो एम्पलीट्यूड्स में. उर्विश एक्सीलेंट, बिल्कुल सही. प्रत्युष ओके गुड गुड. प्रत्युष नहीं, प्रत्युष मैं बोल रहा हूं आप एफसी देखो, आप उल्टा उल्टा कर रहे हो. एफसी प्लस एफएम कहां पे होगा, एफसी माइनस एफएम कहां पे होगा, प्रत्युष देखो एक बार. ओके सो चलिए, आई होप बाकी सब लोग ओके ओके. सो अगर हम यहां पे बात कर रहे हैं तो मुझे बताओ यहां पे फ्रीक्वेंसी कंपोनेंट्स कहां कहां आएंगे. यहां फ्रीक्वेंसी कंपोनेंट्स कहां कहां आएंगे. जो फ्रीक्वेंसी कंपोनेंट्स हैं वो कहां कहां आएंगे. सो यू विल से फ्रीक्वेंसी कंपोनेंट्स कहां कहां आएंगे. सर एफसी पे आएगा, एफसी प्लस एफएम पे आएगा और एफसी माइनस एफएम पे आएगा. बोलो हाँ कि ना. जो फ्रीक्वेंसी कंपोनेंट्स हैं वो कहां कहां आएंगे, वो बोलोगे आप सर एफसी, एफसी प्लस एफएम और एफसी माइनस एफएम पे आएगा, राइट. बट नाउ द थिंग इज उसका एम्पलीट्यूड, नाउ उसका एम्पलीट्यूड. सो नाउ आई थिंक अगर हम बात कर रहे हैं उसके एम्पलीट्यूड का, सो आपको ये पता होना चाहिए कि अगर टाइम डोमेन में, अगर टाइम डोमेन में ये AC cos 2 pi FCT है, अगर ये टाइम डोमेन में AC cos 2 pi FCT है तो फ्रीक्वेंसी में कहां होगा स्पाइक. तो फ्रीक्वेंसी में स्पाइक कहां पे होगा, FC और माइनस FC पे होगा, जिसका एम्पलीट्यूड हो जाएगा, एरिया हो जाएगा AC/2. बोलो हाँ कि ना, बोलो हाँ कि ना. फॉर फ्रीक्वेंसी रिस्पॉन्स मैं कौन सा कलर यूज कर रहा हूं, ओके आई एम यूजिंग ब्लैक कलर. बोलो हाँ कि ना. अगर हम स्पाइक्स की बात कर रहे हैं तो स्पाइक कहां आएगा. एक तो स्पाइक आएगा आपका FC पे, एक स्पाइक आएगा आपका FC पे, उसके बाद आएगा आई में से FC प्लस FM पे, उसके बाद एक और स्पाइक आएगा जो होगा आपका आई में से FC माइनस FM पे. प्रत्युष आप यहां पे गलती कर रहे थे, आपका FC प्लस FM, FC माइनस FM सब अलग अलग आ रहा था. आई होप आपको क्लियर है अब. हाँ तो ये बनेगा आपका पूरा स्पाइक्स कहां कहां पे, ये बनेगा आपका पूरा स्पाइक कहां कहां पे, ये बनेगा पॉजिटिव फ्रीक्वेंसी पे और ऐसा ही बन जाएगा फॉर नेगेटिव फ्रीक्वेंसी, राइट. बोलो हाँ कि ना.
समझ रहे हो सब लोग ये बातें? अगर ये बातें समझ रहे हो तो लेट मी नो, ये कंपोनेंट कहाँ पे होगा? ये कंपोनेंट होगा आपका FC पे, ये कंपोनेंट होगा आपका FC प्लस FM पे, ये कंपोनेंट होगा आपका FC माइनस FM पे, लाइकवाइज ये होगा माइनस FC, ये होगा माइनस FC प्लस FM, और ये होगा आपका माइनस FC माइनस FM, राइट? अगर हम यहां बात कर रहे हैं एम्पलीट्यूड्स का, तो ये हो जाएगा, इसका एरिया हो जाएगा, इसका एरिया हो जाएगा AC/2, इसका हो जाएगा AC μ/4। आपको ये सभी एरिया याद रखने हैं, क्योंकि गेट क्या करेगा, आपको फ्रीक्वेंसी रिस्पांस देगा और वहां से म्यू और वो सब कुछ फाइंड करने के लिए बोलेगा। तो आपके दिमाग में ये होना चाहिए कि AC μ/4 ये होता है एरिया ऑफ अ स्पाइक एट FC प्लस FM और FC माइनस FM। बोलो हाँ कि ना? ये रटना पड़ेगा आपको, ये रटना पड़ेगा आपको? बिल्कुल नहीं। आपको मुझे ये बताओ क्या याद रखना है? हाँ, यहां क्या लिया है, यहां कंडीशन क्या लिया है मैंने कि जो म्यू है वो म्यू क्या है, इट इज लेस देन 1। यहां कंडीशन क्या लिया है मैंने, कंडीशन ये लिया है कि म्यू जो है वो लेस देन 1 है, राइट? सो आपको याद क्या रखना है, याद रखना है इन जनरल एक्सप्रेशन ऑफ AM। आपको याद रखना है इन जनरल एक्सप्रेशन ऑफ AM। और मुझे ये बताओ आपको ये याद रहेगा? जैसे कि मैंने आपको पूरा लॉजिकली समझाया है इसको, कि इसको कैसे याद रखना है। कैसे याद रखोगे कि यहां पे हम कैरियर को मल्टीप्लाई करेंगे विथ DC शिफ्टेड मैसेज सिग्नल। बोलो हाँ कि ना? हम कैरियर सिग्नल को मल्टीप्लाई करेंगे विथ DC शिफ्टेड मैसेज सिग्नल। रिक्वायरमेंट पड़ा तो हम मैसेज सिग्नल को स्केल अप या स्केल डाउन करेंगे। ये है हमारा AM। क्लियर है सबको ये बात? हाँ बेटा, क्लियर है ये बात सबको? अगर क्लियर है तो कैन एनीवन टेल मी कि AM का बैंडविड्थ क्या होगा? आपको पता है बैंडविड्थ क्या होता है? कभी किसी ने बात की है आपके साथ रिगार्डिंग बैंडविड्थ? एग्जैक्टली 2 FM होगा। तो बैंडविड्थ क्या होता है, कहीं ना कहीं पे लिख लीजिएगा। बैंडविड्थ क्या होता है? बैंडविड्थ क्या होता है? बैंडविड्थ क्या होता है? बैंडविड्थ क्या होता है? ये होता है हाईएस्ट, ये होता है हाईएस्ट पॉजिटिव फ्रीक्वेंसी, हाईएस्ट पॉजिटिव फ्रीक्वेंसी माइनस लोवेस्ट पॉजिटिव फ्रीक्वेंसी। आपको सिर्फ खेलना है इन पॉजिटिव फ्रीक्वेंसी। आप बैंडविड्थ को यहां से यहां नहीं ले सकते। बैंडविड्थ जो है वो आपका सिर्फ और सिर्फ इतना है, इतना ही बैंडविड्थ है। हाईएस्ट पॉजिटिव फ्रीक्वेंसी माइनस लोवेस्ट पॉजिटिव फ्रीक्वेंसी। तो यहां दिखता है कि जो आपका बैंडविड्थ है वो ट्वाइस ऑफ FM हो जाएगा। किसी को कोई शक, कोई डाउट? किसी को भी कोई शक, कोई डाउट इन द बैंडविड्थ? हाईएस्ट पॉजिटिव फ्रीक्वेंसी माइनस लोवेस्ट पॉजिटिव फ्रीक्वेंसी। करेक्ट है ये बात? ये पूरा समझ रहे हो? अगर ये पूरा समझ रहे हो तो माय नेक्स्ट टॉपिक फॉर दिस इज पावर कैलकुलेशन। पावर कैलकुलेशन। तो चलिए एक और बार हम लोग यहां पे लिखते हैं AM का एक्सप्रेशन। अभी हम सिंगल टोन की ही बात कर रहे हैं। तो चलिए इन केस ऑफ सिंगल टोन इसका पूरा एक्सप्रेशन क्या होगा लिखो। चलो आप लोग अपनी बुक में, अपनी कॉपी में इसका पूरा एक्सप्रेशन लिखो विदाउट टर्निंग द पेज। ट्राई टू राइट बाय योरसेल्फ विदाउट लुकिंग जहां भी आपने लिखा है AM का एक्सप्रेशन क्या होगा। वहां पे कैरियर कंपोनेंट होगा तो बोलेगे, आप लोग बोलोगे हाँ
वहां पे कैरियर कंपोनेंट होगा, कौन होगा वो? AC cos ऑफ 2 पाई FCT, राइट। उसके बाद क्या होगा? एक अपर साइड बैंड होगा जो होगा AC म्यू बाई 2 कॉस ऑफ आई में से 2 पाई FC प्लस FMT, ये अपर साइड बैंड है। और एक होगा लोअर साइड बैंड, वो क्या होगा? AC म्यू बाई 2 कॉस ऑफ 2 पाई आई में से FC माइनस FMT। बोलो हाँ कि ना? आपको मालूम है यहाँ पे अपर साइड बैंड कौन है? ओके, यहां ध्यान दो, यहां आपको कौन कौन सा फ्रीक्वेंसी कंपोनेंट मिला? एक तो कैरियर फ्रीक्वेंसी कंपोनेंट, एक FC प्लस FM, एक FC माइनस FM। तो इन केस ऑफ AM क्या क्या है? कैरियर फ्रीक्वेंसी कंपोनेंट है, साथ में इसको बोलेंगे अपर साइड बैंड USB, और इसको बोलेंगे LSB लोअर साइड बैंड। बोलो हाँ कि ना? अपर साइड बैंड एंड लोअर साइड बैंड। लोअर साइड बैंड कौन होगा? जो आपका कंपोनेंट है FC माइनस FM वाला, लोअर साइड बैंड, राइट। चलिए, तो यहां आप पावर निकाल पाओगे? बताइए, आप यहां पावर निकाल पाओगे? कैरियर पावर क्या होगा, कोई बता पाएगा? कैरियर पावर मैं लिखता हूं उसको PC इज इक्वल टू कैरियर पावर। ये सिंपल है, बताओ कैरियर पावर क्या होगा? एकदम सिंपल है, बताओ कैरियर पावर क्या होगा? बहुत सही, कैरियर पावर क्या होगा? ये हो जाएगा आपका AC स्क्वायर बाई 2, AC स्क्वायर बाई 2। चलिए, यहां पे कैन यू टेल मी अपर साइड बैंड का पावर क्या होगा? PUSB, और वही होगा आपका LSB का। तो ये क्या है आपका? साइड बैंड पावर। तो बताओ साइड बैंड पावर कितना होगा? कोई बता पाएगा? साइड बैंड पावर, हाँ सिंपल है, क्या हो जाएगा? सोच के बताओ, सोच के बताओ। मैं टोटल साइड बैंड पावर की बात नहीं कर रहा हूं, मैं इंडिविजुअल साइड बैंड की बात कर रहा हूं। इंडिविजुअल साइड बैंड का पावर क्या हो जाएगा? इंडिविजुअल साइड बैंड का पावर क्या हो जाएगा? एग्जैक्टली वो क्या हो जाएगा? वो हो जाएगा AC स्क्वायर म्यू स्क्वायर बाई क्या होगा? बताओ बाई क्या होगा? बहुत सही, क्या होगा? ये हो जाएगा आपका बाई 8, राइट। तो यहां से हम बोल सकते हैं टोटल साइड बैंड पावर, टोटल साइड बैंड पावर कितना हो जाएगा? टोटल साइड बैंड पावर विच इज इक्वल टू आई में से P साइड बैंड, ये हो जाएगा आपका आई में से AC स्क्वायर म्यू स्क्वायर डिवाइड बाय 4। बोलो हाँ कि ना? तो हम यहां से बोल पाएंगे P टोटल पावर ये कितना हो जाएगा? अगर हम बात कर रहे हैं टोटल पावर का, तो टोटल पावर हो जाएगा आपका पावर इन अ कैरियर प्लस पावर इन अ साइड बैंड, इट वुड बी इक्वल टू आई में से AC स्क्वायर बाई 2 प्लस आई में से AC स्क्वायर म्यू स्क्वायर डिवाइड बाय 4। इफ आई सिंप्लीफाई दिस, तो ये हो जाएगा AC स्क्वायर बाई 2, ये हो जाएगा AC स्क्वायर बाई 2 इंटू आई में से 1 प्लस म्यू स्क्वायर बाई 2। बोलो हाँ कि ना? बोलो हाँ कि ना? तो इसको मैं लिख सकता हूं कैरियर पावर इंटू 1 प्लस म्यू स्क्वायर बाई 2, अ वेरी इंपॉर्टेंट इक्वेशन। A total power for AM signal is what? Carrier power into 1 plus mu square by 2। सबको ये समझ में आया?
सब लोग ये समझ रहे हो? आर यू फॉलोइंग इट? आर यू फॉलोइंग इट? अ वेल नोन इक्वेशन ऑफ पावर, अ टोटल पावर फॉर एएम सिग्नल। इसमें कुछ भी रटना है? अगर आपने आज घर पे खुद से बैठ के अगर आपने ये पूरा डेरिवेशन और सब कुछ एक बार लिख डाला ऑन अ ब्लैंक पेपर, बिलीव मी ये सब कुछ आपको याद रह जाएगा। इट्स अ प्योर मैथ्स, तो मैं बोलूंगा हाँ ये प्योर मैथ्स है, यहाँ लॉजिक बिल्कुल नहीं है। इट्स अ प्योर मैथ्स। लॉजिक कहाँ था? लॉजिक ये था एएम का इक्वेशन लाए ऐसा क्यों लाए, वहां लॉजिक था, राइट? एंड आई होप दैट लॉजिक वी हैव गॉट। नाउ द थिंग इज, यहां पे मुझे ये बताओ इंफॉर्मेशन कौन कैरी कर रहा है? सर अगर मैसेज सिग्नल साइनसोइडल नहीं रहा तो पावर कैसे निकालेंगे? सुमित, जनरली ऐसा ही रहता है, साइनसोइडल ही रहता है। अगर नहीं देगा तो वी कैन गो फॉर उसका फोरियर सीरीज एंड वी कैन फाइंड उसका पावर, और इवन वी कैन गो फॉर से पावर फ्रॉम उसका टाइम डोमेन। तो सुमित हमारे पास नहीं, आरएमएस वैल्यू नहीं, पावर ही निकालना है। हाँ चलेगा, आरएमएस वैल्यू निकाल के यू कैन गो फॉर द स्क्वायर, उसका स्क्वायर निकाल के यू कैन फाइंड उसका पावर। सो अगर हम यहां पे बात कर रहे हैं किसके बारे में, यहां इंफॉर्मेशन जो है वो कौन कैरी कर रहा है? मुझे ये बताओ, जो कैरियर है यहां, मुझे ये बताओ, एक ही सेकंड, मुझे ये बताओ जो एम्पलीट्यूड मॉड्यूलेशन है यहां पे हमने अगर इसको एक्सपांड किया, देखो अगर हम ये इसको एक्सपांड कर रहे हैं, देखो ये एक्सपांड किया है हमने, तो ये जो पूरा चीज है, ये जो पूरा चीज है जो आपको दिख रहा है, इस चीज को क्या मैं सी ऑफ टी इंटू एम ऑफ टी लिख सकता हूं? बताओ मेरे को। ये जो चीज है इसको मैं सी ऑफ टी इंटू एम ऑफ टी लिख सकता हूं? सब लोग बताओ मुझे, आप समझ रहे हो ये बात? इज इट सी ऑफ टी इंटू एम ऑफ टी? फॉरगेट अबाउट एसी म्यू ओवर हियर, वो तो उसका एम्पलीट्यूड है, मगर जो प्रोसेस हो रहा है इज इट सी ऑफ टी इंटू एम ऑफ टी? हाँ, मगर इन केस ऑफ एम हम एक्स्ट्रा क्या भेज रहे हैं? इन केस ऑफ एम हम एक्स्ट्रा क्या भेज रहे हैं? टीसी? नहीं, ये क्या है ये? नहीं, ये पूरा खोल दो, ये खोल दिया, ये पूरा मेरा सी ऑफ टी इंटू एम ऑफ टी है, साथ में एक्स्ट्रा क्या भेजा हमने? एग्जैक्टली, साथ में हम एक्स्ट्रा क्या भेज रहे हैं? सी ऑफ टी भेज रहे हैं, राइट? सो नाउ द थिंग इज, मुझे ये बताओ मॉड्यूलेशन में इससे काम बन जाता? अगर हमें ट्रांसमिट करना है सिग्नल को तो सी ऑफ टी एम ऑफ टी से काम बन जाता? अगर आपको वायरलेसली ट्रांसमिट करना है तो सी ऑफ टी एम ऑफ टी से काम बन जाता? हाँ बन जाता, मगर हम लोग एक्स्ट्रा यहां क्या भेज रहे हैं? हम यहां एक्स्ट्रा क्या भेज रहे हैं? ये कैरियर भेज रहे हैं। तो यहां नक्कामा कौन है? ये पूरे इक्वेशन में नक्कामा कौन है? हाँ आई नो, उससे फायदा हो रहा है, वी कैन यूज पीक डिटेक्टर, मगर इन सब में नक्कामा कौन है? कैरियर है। जो कैरियर सिग्नल एक्स्ट्रा भेज रहे हैं, इज इट कैरिंग एनी इंफॉर्मेशन? जो कैरियर सिग्नल है इज इट कैरिंग एनी इंफॉर्मेशन? नहीं, वो तो एक्स्ट्रा भेजा हम लोगों ने। तो यहां पे अगर हम बात करेंगे पावर के बारे में तो यहां पे आता है परसेंटेज, एक और पैरामीटर है जो है परसेंटेज यूजफुल पावर। परसेंटेज यूजफुल पावर। तो मुझे ये बताओ यूजफुल पावर कौन कैरी कर रहा है, कैरियर या साइड बैंड?
जो यूजफुल पावर है वो कैरी कौन कर रहा है, कैरियर या साइड बैंड, साइड बैंड। तो परसेंटेज यूजफुल पावर क्या होगा, पावर इन अ साइड बैंड, पावर इन अ साइड बैंड यानी कि यूजफुल पावर। इसका इक्वेशन क्या बनेगा, इक्वेशन बनेगा आई में से यूजफुल पावर, आई में से वो बनेगा यूजफुल पावर अपॉन टोटल पावर। ये क्या बनेगा, ये बनेगा आपका यूजफुल पावर अपॉन टोटल पावर। तो चलिए अगर इसका इक्वेशन निकाल रहे हैं तो बताइए क्या बनेगा। चलिए हेल्प कीजिएगा, आपने कॉलेज में ये सब चीजें पढ़ी हुई ही है। यूजफुल पावर क्या है, यूजफुल पावर होगा इन साइड बैंड डिवाइड बाय आई में से टोटल पावर, टोटल पावर आई में से इंटू 100 फॉर द परसेंटेज। अरे रे रे मेरा पेज खत्म हो गया, तो आई थिंक ये बन जाएगा, ये बन जाएगा साइड बैंड में पावर कितना है, वो है आपका AC स्क्वायर म्यू स्क्वायर डिवाइड बाय 4, और जो टोटल पावर है वो है आपका AC स्क्वायर डिवाइड बाय 2 1 प्लस म्यू स्क्वायर बाय 2 इंटू 100। तो अगर आप यहाँ पे इसको सिंप्लीफाई कर रहे हो तो यू विल लेफ्ट विद द आंसर जो आएगा आपका म्यू स्क्वायर अपॉन 2 प्लस म्यू स्क्वायर। बोलो हाँ कि ना, इंटू 100%। हाँ, जो मॉड्यूलेशन एफिशिएंसी है वो भी यही है। नहीं नहीं सुमित, जो मॉड्यूलेशन एफिशिएंसी है वो म्यू को बोलते हैं, म्यू, म्यू को ही बोलते हैं मॉड्यूलेशन एफिशिएंसी। परसेंटेज यूजफुल पावर, और जो आपका मॉड्यूलेशन एफिशिएंसी है वो उसको ही बोलते हैं मॉड्यूलेशन इंडेक्स को, है ना। अच्छा चलो, तो मुझे ये बताओ ये सब कुछ समझ में आया, परसेंटेज पावर कैलकुलेशन ये सब कुछ जो किया है ये समझ में आया आप सबको। ओके ओके, कोई डाउट है इसके अंदर, हाँ कोई डाउट है इसके अंदर, फ्रीक्वेंसी स्पेक्ट्रम जो ड्रॉ किया है वो सब कुछ समझ रहे हो। आई में से जो मेन मोटिवेशन है वो मेन मोटिवेशन समझ रहे हो कि इस सब का मेन मोटिवेशन क्या है, हाँ इन सब का मेन मोटिवेशन क्या है आप लोग ये समझ रहे हो। हाँ बेटा, ओके ओके, चलिए तो खत्म करते हैं आज का सेशन यहीं पे, क्योंकि एग्जाम्पल्स हैं तो अभी सॉल्व नहीं कर पाएंगे। सो चलिए मिलते हैं कल सुबह फिर से, तो हमारा AM खत्म हो जाएगा, खत्म नहीं लाइक ऑलमोस्ट आई में से विल कीप डिस्कशिंग अबाउट इट टुमारो, राइट। चलिए कोई डाउट है तो मुझे बताइए, अदरवाइज वी कैन मूव अहेड।